Okay, so I'll start with my profile. So I'm Digital Guru Sanjog. My name is Sanjog Mishram, and I have been into social media and digital marketing domain since last almost 15 years. Total experience is more than 16 years. I have been working with many organizations like multinationals, Hindustan Times, and then Tanla Solutions. Then I worked with Densu India, that is one of the biggest advertising company. As well as I worked with Aircel, that was a telecom provider. So I have been working with various mobile segments and advertising industries. And I started my career with all those companies, and then finally I started my own. And currently I'm with Zapcode Solution. I'm founder of Zapcode Solutions. I'm also a founder of Zapcode Academy. Zapcode Solution is software development and ERP development company. We have two offices. First office is in Nagpur, and second one is in Mumbai. We have had a presence in Pune as well 2 years back before COVID. Then we shut off that Pune office, but we have a few employees who are working from home from Pune. So as of now, we are connected with three cities: Nagpur, Pune, and Mumbai, and we have been servicing to many of the clients, more than 500 clients, pan India and as well as globally. So we have been developing website. We have been developing ERPs for school, colleges. Then we have developed few billing softwares. Or one of few of our clients are government, from government sectors, and you must be aware that Datta Meghe Medical College from Patan Savangi, Varda. But then few years back, almost I think 10 years back, we shifted our focus on digital marketing as well. Digital marketing, this word is unknown 10 years back actually, but currently digital marketing is especially post COVID, सब लोग जानने लगे हैं digital marketing को, and that is the reason I'm here to speak about digital marketing and the scope of digital marketing, career options of digital marketing. We do not have any connections with Amravati as of now. Amravati में हमारे कोई clients नहीं है, लेकिन at present जो है because I think हम लोगों ने कुछ काम किया नहीं अमरावती में अभी तक, but now you people are here from Amravati, and I am glad to have you all from Amravati. This is some kind of first session or first connection between you and me, and between your city Amravati. In fact, I think I would like to tell you that I have been to Amravati many times because my maternal side the relatives are staying in Amravati. So उस हिसाब से अभी at present मैं नागपुर में हूँ. So ये मेरा background है at present. Okay, so let's start with, I think हम लोग शुरुआत करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक कंसेप्ट के साथ में. आप आई होप यू नो डिजिटल मार्केटिंग क्वाइट वेल, क्योंकि अभी सभी जगह पर डिजिटल मार्केटिंग जो है वो काफी पॉपुलर हो चुका है. सब लोग जानना समझना चाहते हैं, और कोविड के बाद में स्पेशली काफी लोग समझना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है. ओके, मैं आई थिंक आई वुड लाइक टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छी तरह समझे. ओके, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो एटलीस्ट डिजिटल मार्केटिंग की. सो लैंग्वेज जो है वो बैरियर नहीं होगा हमारे बीच में, आपके और मेरे बीच में. आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझे कभी भी, जब चाहो तब, चाहे आप वो हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो. आई विल ट्राई टू आंसर देन एंड देयर. और अभी नहीं, इस सेशन में नहीं, सेशन के बाद में भी मैं अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दिया करूंगा. आप लोग तब भी मुझे कनेक्टेड रह सकते हैं. वैसे भी आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं. डिजिटल गुरु संजोग नाम का चैनल है. आई हैव 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन डिजिटल गुरु संजोग, दिस चैनल, एंड आई हैव बीन गिविंग टिप्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग ओनली. सो मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस कहिए या फिर मेरा पैशन कहिए, वो डिजिटल मार्केटिंग है. सो गाइज, शुरुआत करते हैं पैशन से. ओके, सो पैशन हम लोग हर कोई डिस्कस करता है कि मेरा पैशन क्या है. हर कोई बताना चाहता है पैशन क्या है. मेरे हिसाब से एक सिंपल पैशन का डेफिनेशन होता है, वो मेरी डेफिनेशन है. जब आप जहां पर भी काम करते हो, जहां पर भी अभी पढ़ रहे हो आप, ओके, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि संडे कब आएगा किसी फील्ड में, इफ यू आर डूइंग योर एमबीए एंड यू आर मिसिंग योर कॉलेज और whatever, because there is no college on Sunday or Saturday, Sunday, whatever, on weekends. लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आप वेट करते हो सैटरडे संडे का, तो आप समझो कि आप रॉन्ग फील्ड में हो, आप अपने पैशन के साथ जुड़े हुए नहीं हो. लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो आप में से जो सोचता है यार सैटरडे संडे भी कॉलेज क्यों नहीं है, या फिर मैं जैसे सोचता हूँ कि सैटरडे संडे भी वर्किंग क्यों नहीं होता, या संडे को वर्किंग क्यों नहीं है,
तो आप समझो कि आप सही फील्ड में हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को 24/7 जो है अपने फील्ड के साथ जुड़े रहना है, तभी हम लोग पैशन से जुड़े रहते हैं। और तभी जब आप तभी जुड़े रहते हो जब आप अपने पैशन के साथ जुड़े हो। आप एंजॉय तभी करते हो जब आप पैशन के साथ जुड़े हो। डिजिटल मार्केटिंग भी एक पैशन है गाइस, और पैशन होना भी चाहिए, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है हर किसी का डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्शन होगा। हर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ में कनेक्टेड होगा, आपके अपने प्रोफाइल्स होंगे। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दो प्लेटफॉर्म ही जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म नहीं है। ओके, डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया इज पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन पे लेके जाऊंगा गाइस, जहां पर आप समझ सको कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और फिर हम लोग करियर ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए आपको, और उसके बाद में क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, और आगे आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग का डेवलपमेंट या नेक्स्ट स्टेप कैसे होने वाला है। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक ऑन each parameter. So I'll take you to the my screen. One second. I'll share my screen. Digital marketing introduction. Let's try to understand digital marketing first. I think एक साइट है, आप लोगों ने इस साइट के बारे में सुना नहीं होगा। मैं आप सब लोगों को इस साइट पे लेके जाना चाहता हूँ, बेटफाई, और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ मैजिकल नंबर्स। ओके गाइस, हम लोग एक साइट के ऊपर में है, और ये साइट है betfi.uk। और इस साइट के ऊपर में हम लोग सेकेंड वाइज कुछ चीजें देख रहे हैं। जैसे आप सेकंड्स देख सकते हो, 20 सेकंड्स हो गए हम लोगों ने पोर्टल ओपन करके। और इस वेबसाइट के ऊपर में आप देख सकते हैं फेसबुक के कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो एवरी सेकेंड फेसबुक के ऊपर में 23 लैक्स, सॉरी 2 लैक्स, सॉरी है या 26 लैक्स लाइक्स जो आ रहे हैं। इंस्टाग्राम के आप देख सकते हो 19 लैक्स आ रहे हैं, यहाँ पर 20 लैक्स हो चुके हैं पर सेकेंड। ट्विटर के ऊपर भी देख सकते हो आप, इनका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू देख सकते हो। इनका ट्विटर का, इंस्टाग्राम का रेवेन्यू है 2000 4000 वॉट एवर 2500 नियर अबाउट डॉलर्स पर सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पर सेकंड वो लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर ट्विटर की बात करें तो $4000 $5000 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और उसी तरह से हम लोग बाकी भी अगर देखेंगे, स्नैपचैट, यूट्यूब के ऊपर में देख लीजिए गाइज। आपको बताना चाहूंगा कि यूट्यूब के ऊपर में हम लोग इंडियंस 2.5 आवर्स एवरेज स्पेंड करते हैं, 2.5 घंटा स्पेंड करते हैं। एंड आवर्स ऑफ वीडियो अपलोडेड, मतलब 400 आवर्स का कंटेंट अपलोड होता है यूट्यूब के ऊपर में एवरी सेकेंड। आप रेवेन्यू देख सकते हो, $11,000 का रेवेन्यू है यूट्यूब का। सेम अप्लीकेबल टू पिंटरेस्ट। आई थिंक पिंटरेस्ट बहुत लोग जानते नहीं है इंडिया में, लेकिन पिंटरेस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन शेयर इमेजेस। दोस्तों पिंटरेस्ट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर आप इंस्टाग्राम की तरह फोटो शेयर कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम में जैसा एंटरटेनमेंट के लिए है, आप अपनी इमेजेस शेयर करते हो इंस्टाग्राम के ऊपर में, लेकिन पिंटरेस्ट ये टोटली बिजनेस के लिए है। अगर आप अपने बिजनेस मतलब अपनी कंपनी हो, प्रोडक्ट हो, सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हो, तो आप पिंटरेस्ट के ऊपर में कर सकते हो। पिंटरेस्ट अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर $600 प्लस का रेवेन्यू जनरेट होता है। और पिंटरेस्ट में अच्छा खासा ग्रोथ है गाइस, स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियंस जो है पिंटरेस्ट पे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर टम्बलर है, क्लाउड सर्विस स्टोरेजेस देख सकते हो आप यहाँ पर। ये होस्टिंग सर्विसेज है गाइस, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, इनका रेवेन्यू चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आप, ये सब कंपनी जो है ये डिजिटल मार्केटिंग के बेस्ड मार्केटिंग में बिलीव करती है, और ये ऑनलाइन कंपनीज हैं, इनका रेवेन्यू ऑनलाइन आता है। एयरबीएनबी आपको पता होगा, अगर आपने ओयो रूम सुना है तो एयरबीएनबी इज द कॉम्पिटिटर ऑफ ओयो रूम्स। They have a different marketing goals actually, although their agenda is to get customers or give rooms to the customers or travelers जो भी ट्रैवल करते हैं उनके लिए रूम्स अवेलेबल कराते हैं ओयो रूम्स। एयरबीएनबी एक अलग कंपनी है। जैसे ये कंपनी जो है आपके कॉटेजेस है, सपोज कहीं पर ये आपका फ्लैट है, उसको आप रेंट पे दे सकते हो ट्रैवलर्स के लिए, तो आप एयरबीएनबी से जुड़कर आप काम कर सकते हो। तो एयरबीएनबी का रेवेन्यू देख सकते हो आप $5000+। अगेन इनके किसी के अपने होटल्स नहीं है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सेम अप्लीकेबल टू बुक, ट्रिप एडवाइजर, उबर को तो जानते हो आप लोग शायद, आई डोंट नो अमरावती में अवेलेबल है नहीं है उबर, लेकिन इंडिया के बहुत सारे मेट्रोज में उबर है। लाइक उबर इज कॉम्पिटिटर ऑफ ओला कैब। और इसका रेवेन्यू भी चेक कर सकते हैं। मुझे बीच में मुझे एक्चुअली ऐड करना पड़ रहा है। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो उबर का रेवेन्यू $7000+ पर सेकेंड का है। उसके बाद गूगल का आप देख सकते हो, गूगल के ऊपर में मोर देन करोड़ सर्चेस आते हैं गाइस।
तो गूगल जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है गाइस, इंडियंस के लिए भी और बहुत सारी कंट्रीज के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा क्राउड, इतनी ज्यादा ट्रैफिक कहीं पर भी नहीं आती है। आप देख सकते हो 1 करोड़ प्लस की ट्रैफिक आती है 1 सेकंड में, और इतने सर्चेस हो रहे हैं। और सर्चेस जब करते हो आप गूगल के ऊपर में, तो आप इंटेंशनली गूगल के ऊपर में जाते हो और कुछ सर्च करते हो, और मतलब आपको कुछ चाहिए होती, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और उस इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो गूगल के ऊपर में। सो देर इज नॉट इवन सिंगल डे वेयर वी कैन लिव विदाउट गूगल। गूगल के बिना हम लोग रह नहीं सकते। और उसकी तरह गूगल का कॉम्पिटिटर है याहू, यांडेक्स, बाइडू। बाइडू इज अगेन क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ गूगल। जिस तरह से गूगल को हम लोग यूज करते हैं इंडिया में, चाइना में गूगल यूज नहीं होता, चाइना में बाइडू यूज होता है। तो चाइना ने अपना खुद का सर्च इंजन बना दिया है जिसका नाम है बाइडू। अगर आपको पता होगा कि वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर जैकमा, जैकमा का ही सर्च इंजन है ये बाइडू। और उसके बाद में बिंग देख सकते हो, बिंग कनाडा में, यूएस में काफी यूज होता है। इसका रेवेन्यू देख सकते हो आप, $36,000 का रेवेन्यू है, गूगल के कंपैरिजन में बहुत कम है। आप देख सकते हो गूगल का रेवेन्यू जो है $6,27,000 पर सेकेंड। गाइज मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि आप लोग यहाँ पे समझे। अमेजोन देख लीजिए गाइज, अमेजोन का रेवेन्यू आप देख सकते हैं $1,000+ का है पर सेकेंड। सो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, ये प्लेटफॉर्म्स आपको इसलिए दिखा रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर ही आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, यहां पर भी आपका ग्रोथ है, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म्स है जो आने वाले समय में वर्ल्ड को रूल करने वाले हैं और कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी रूल कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। और ये इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है, आप देखो गूगल की एड आप कभी भी नहीं देखोगे कोई होर्डिंग लगा हुआ है, कोई ब्राउजर, कोई लिफलेट, कोई आपको टीवी के ऊपर में एड चल रही है, सब बहुत कम होता है। उनके ज्यादातर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ऑनलाइन मीडिया के ऊपर में होते हैं, और ये जितनी भी कंपनीज है वो ऑनलाइन मीडिया में ही बिलीव करती है। सो इसलिए हम लोग जो है आज डिजिटल मार्केटिंग को क्लोजली समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइज। सो स्टार्ट विल, आपको पता है आप तो मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, यू आर डूइंग योर एमबीए, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट फिलिप कोटलर एंड यू आर aware about the definition of marketing. So I'm not taking you to the definition of marketing, but definitely I am going to tell you about digital marketing. So simple words में digital marketing क्या है वो बता देता हूं मैं। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इंटरनेट, with the use of internet, if you are selling any product or services, is digital marketing. So if you are using internet to sell your product and services, that is going to be a digital marketing. So internet marketing भी कहते हैं, लेकिन digital marketing के अंदर इंटरनेट मार्केटिंग आता है। इंटरनेट मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो व्हाटएवर 360 डिग्री सॉल्यूशन जब आप प्रोवाइड करते हो, मार्केटिंग सॉल्यूशन, it's related with all the digital media, then that is called digital marketing. Simple words में, with the help of internet you are selling your product or promoting your product or services, that is called digital marketing. Okay, अब digital marketing में हम लोग जब देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ओके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोगों ने फ्लायर्स, रेडियो, टेलीविजन, इस तरह के बहुत सारे मीडिया को हम लोगों ने यूज किया है। I think ये ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। I think if you can see that you people are not, I think available on television nowadays, because I think टेलीविजन के ऊपर में ऑलमोस्ट हमारा टाइम कम हो गया है, हैंडसेट के ऊपर में ज्यादा हो गया है। और जब आप हैंडसेट के ऊपर में अवेलेबल हो तो डेफिनेटली आप डिजिटल मार्केटिंग के ऑलरेडी पार्ट हो। आई थिंक मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग जो है हम लोग ऑलरेडी करते हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर में, इंस्टाग्राम के ऊपर में इमेजेस पोस्ट करते हैं हम लोग, तो वो भी एक सेल्फ मार्केटिंग होती है। सेल्फ मार्केटिंग इन द सेंस हम लोग जो है उस इमेज को लेते हैं, हमारे फोटोज 8-10 पिक्चर्स निकालते हैं, उस पिक्चर में से एक पिक्चर चूज करते हैं और उस पिक्चर को हम लोग एडिट करने के बाद में अपलोड करते हैं स्टेटस में या फिर प्रोफाइल पिक्चर में, और उसके बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको लाइक करे, और लाइक के बाद में साथ में कमेंट्स भी आए, कोई शेयर कर दे। गाइज ये सब मार्केटिंग ही है। आप यू आर डूइंग योर सेल्फ मार्केटिंग, और इट इज नथिंग बट डिजिटल मार्केटिंग। सो आप डिजिटल मार्केटिंग के ऑलरेडी पार्ट हो, और इसलिए डिजिटल मार्केटिंग जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइज। जैसे आप अभी सपोज अमरावती में हो, और अगर आप कोई होर्डिंग देखते हो अमरावती में किसी भी चीज का, शायद वो इंजीनियरिंग कॉलेज का हो या फिर किसी प्रोडक्ट का हो, कोई होर्डिंग देखते हो, तो उस होर्डिंग को देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उसका एक स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर नहीं होता है। मतलब सपोज एक हैंडसेट है, एमआई का हैंडसेट, उसका एड लगा हुआ है, उसका होर्डिंग लगा हुआ है एमआई का हैंडसेट, तो उस एमआई के हैंडसेट की कॉस्ट ₹20,000,
तो 10 to 15,000 रुपीज की कॉस्ट होती है, तो उसका एक सर्टन टारगेट कस्टमर बन जाता है। और टारगेट कस्टमर होता है 10 to 15,000 के लिए हो सकता है जो कॉलेज गोइंग किड्स है, आप लोग जैसे जो एमआई के हैंडसेट यूज करते हैं, या फिर जिनको अभी अभी जॉब मिला है, तो ऐसा टारगेट कस्टमर जो है वो एमआई के हैंडसेट परचेस करता है। लेकिन उस टारगेट कस्टमर को या फिर उस एड को देखने वाले जो होर्डिंग लगता है वो हर कोई होता है। एक बच्चा भी देखता है, एक मिड एज बंदे बंदे भी देखते हैं, और एक ओल्ड एज बंदे भी देखते हैं उस एड को। तो लेकिन उसका टारगेट कस्टमर तो होता है, वो होता है कॉलेज गोइंग किड्स, लेकिन वो एड्रेस नहीं कर पाता। मतलब होर्डिंग में जब आप सब लोग देख रहे हो तो आपके टारगेट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाते हो। राइट टारगेट कस्टमर तक पहुंचने के लिए समय लगता है होर्डिंग्स के थ्रू, या चाहे पेपर लिफलेट्स भी आता है, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, उसमें लिफलेट्स होता है, पेपर लिफलेट्स, वो भी हर कोई देखता है। तो कस्टमर अलग अलग होता है, लेकिन इसके बावजूद तो उस पेपर लिफलेट को सबको देखना पड़ता है घर में। चाहे वो अब सपोज टीवी पे कोई एड चल रही हो, और टीवी के ऊपर में अगर लक्स की एड चल रही है, तो लक्स एड जो है सबको देखना पड़ता है, चाहे वो आप यूज करो या ना करो। लेकिन गाइज यही डिफरेंस है डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हो तो अपनी एड सबको दिखाते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ टारगेट कस्टमर, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपकी एड जो है सिर्फ और सिर्फ नीश ऑडियंस को दिखती है, मतलब जिनको दिखाना चाहते हो आप। जैसे एमआई का हैंडसेट का एज ग्रुप जो है, अगर 15 इयर्स टू 25 इयर्स को दिखाना है तो उन्हीं को ऐड दिखेगी, वो पॉसिबल होता है डिजिटल मार्केटिंग से। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मिनिमम बजट में कर सकते हो आप डिजिटल मार्केटिंग की एड्स। अगेन हम लोग एड्स नहीं, दो तरह की डिजिटल मार्केटिंग होती है गाइस, एक होती है पेड डिजिटल मार्केटिंग, दूसरी होती है फ्री डिजिटल मार्केटिंग। इसको ऐसा भी करते हैं पेड और ऑर्गेनिक। तो हम लोग समझेंगे पेड और ऑर्गेनिक का डिफरेंस, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं आपको कि 2022 तक या आने वाले साल में डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ कैसे होने वाला है, और किस तरह के जॉब्स अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा किसी भी फील्ड में जॉब, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, फेसबुक, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, सबके पास में डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स होते हैं, और वो लोग जॉब्स क्रिएट करते जा रहे हैं। अगर आप इस मीडिया का, अगर इसका फायदा अभी नहीं उठाओगे तो आप लेट हो जाओगे, और यही बोलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चलो मार्केट डिस्कस करते हैं हम लोग। Indian market will be valued at $539 billion. स्नेहल प्लीज गो ऑन म्यूट। स्नेहल आई थिंक कुछ डिस्टर्बेंस आ रहे हैं स्नेहल आपकी तरफ से, प्लीज गो ऑन म्यूट। या राइट, थैंक यू। So Indian market will be valued at $539 billion by 2025. So guys इतना जबरदस्त हाइक मैं आपको ये भी दिखा दूंगा आपको। आप देख सकते हो 2011 में 14.4 था, और आप देख सकते हो 24 में $539 बिलियन का बिजनेस होने वाला है। अभी हम 2020 में $333 बिलियन का, या 2020 में आप देख सकते हो $333 बिलियन का बिजनेस एक्सपेक्ट करने वाले हैं, और वो ऑलमोस्ट 60% ग्रोथ के साथ में बढ़ रहा है। 423 और 539, 2 साल में $539 बिलियन का बिजनेस होने वाला है। इंडिया के टोटल जीडीपी का 1% तक होने के चांसेस है गाइस डिजिटल मार्केटिंग। और अभी भी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ नहीं रहे हो तो आप लेट करोगे। सो आई थिंक हम लोग यही समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि डिजिटल मार्केटिंग में आई थिंक हम लोग जुड़ना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम लोग दो तरह के लोग होते हैं। एक तो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। आप में से कई सारे लोग, आप लोगों के पास में कई सारी आइडियाज हो सकती है, जिन आइडियाज को आप जो है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आगे बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो। ओके, सो उसके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप दिखाऊंगा मैं, आज का डेटा है गाइस। इंडीड के ऊपर में 12,000 प्लस जॉब्स है, नौकरी के ऊपर में 18,000 प्लस जॉब है, मॉन्स्टर के ऊपर में 1,000 प्लस, लिंक्डइन के ऊपर में 14,000 प्लस जॉब्स है गाइस, और टाइम्स जॉब के ऊपर में 28,000 प्लस जॉब्स, शाइन के ऊपर में 12,000 प्लस जॉब। ये डेली के जॉब्स है। ऐसा कहा गया है कि आने वाले साल में 20 लाख जॉब्स ओपन होने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। सो गाइस 20 लाख में से आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप भी वो जॉब ले सकते हो। जिनको जॉब करना है और जिनको एंटरप्रेन्योरशिप बंद करना है या फिर जिनको अपना बिजनेस शुरू करना है, उनके लिए तो स्काई इज द लिमिट। लेकिन गाइस दोनों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब अपॉर्चुनिटीज किस तरह से होती है वो मैं बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग में। गाइस ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैंने जानबूझ के बनाई है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग सब पैसे कमाना चाहते हैं और पैसे के साथ में अपना करियर देखते हैं। हम लोग काउंट भी वही करते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि एमबीए क्यों कर रहे हो,
तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि एमबीए एमबीए में अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये जो है मेक मनी, ये हमेशा हमारे बैक ऑफ द माइंड होता है। इनफैक्ट हमारे घर वाले भी हमको ये बताते हैं कि उस बंदे को इतना जॉब मिला है, उसका उतना पैकेज मिला है। आपका कंपैरिजन चलते रहता है आपके घर वालों का आपके साथ में, और कंपैरिजन इसी होता है कि कितने पैसे कमा रहा है आगे वाला बंदा। और मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी कमाएं, और हर कोई चाहता है, क्योंकि आई थिंक अर्निंग मनी आई थिंक इज वन ऑफ द important part of the life, although it is not the only important part. There are certain other parts as well, but definitely making money is very important part. तो हम लोग उसके ऊपर से हम लोग सोचते हैं डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गाइस गूगल एडसेंस के बारे में। मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं गूगल एडसेंस के बारे में, लेकिन जिनको पता है वो मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गूगल एडसेंस के बारे में, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बताऊंगा गूगल एडसेंस क्या है। गाइस, गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको गूगल पैसे पे करता है। अब पैसे पे करता है गूगल आपको, तो डेफिनेटली गूगल भी कुछ एक्सपेक्ट करता होगा आपसे। अब कैसे पे करवाता है वो मैं हम लोग बताऊंगा आपको, लेकिन आप इतना समझिए कि गूगल हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देता है पैसे कमाने के लिए। आई थिंक गूगल के ऊपर में जैसे हम लोगों ने देखा 1 करोड़ प्लस की ट्रैफिक या फिर सर्चेस एवरी सेकेंड आते हैं। अब इस ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए, इस ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है, पार्टनर बनती है गूगल के साथ में, और गूगल का पार्टनरशिप प्रोग्राम साइन करती है। ओके, और उसके बाद में उनको मिलता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल, और उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है गाइस। मैं बताता हूं रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो आपका यूट्यूब का चैनल हो, या फिर आपकी वेबसाइट हो, या फिर आप जो है गूगल एड्स के ऊपर में काम करो। ओके, अब ये कैसे कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन गूगल एडसेंस जो है समझ जाओ कि ऐसा बंदा है गूगल कि जो आपको पैसे देना चाहता है। ओके, अब आप ले पाते हो गूगल से या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और बैठे बैठे बहुत से अर्निंग होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन करके भी कि किस तरह का इनकम हो सकता है गूगल एड्स के ऊपर में। ओके, तो गूगल एड्स के ऊपर इनकम कैसे होता है, या गूगल एडसेंस के से इनकम कैसे होता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस, वो है ब्लॉगिंग। गाइस, आप लोगों में से कई सारे लोग ब्लॉगिंग करना चाहते होंगे, या फिर कुछ लोग करते भी होंगे। ब्लॉगिंग इन द सेंस आप कुछ लिखते हो। ओके, लिखने के लिए आपको एक सोर्स की जरूरत होती है, वो है वेबसाइट। ओके, आपको लिखना है। अगर पहले कैसा होता था कि हम लोग डायरी भी लिखा करते थे, तो डायरी जो है हम लोग अपने पास क्लोज टू हार्ट रखते थे। ओके, अगर आपके पेरेंट्स लोग जो है उनको पता होगा कि वो लोग भी डायरी लिखा करते होंगे शायद, लेकिन वो क्लोज टू हार्ट हुआ करते, किसी का शेयर नहीं होती थी डायरी। लेकिन गाइस, अभी वो जमाना चेंज हो चुका है। अगर आप डायरी लिखना चाहते हो तो डायरी मत लिखो, आप ब्लॉगिंग लिखो, ब्लॉगिंग करो। ओके, ब्लॉगिंग करना है, अपनी फीलिंग्स जो है वो सबको बताओ, चाहे कोई भी फील्ड हो। ब्लॉगिंग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको कि आपको नीश फाइनल करनी है। नीश मतलब माइक्रो नीश, माइक्रो नीश मतलब एक ऐसी यूएसपी, आपकी खुद की यूएसपी। यूएसपी आई होप समझते हो आप लोग, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी के फुल फॉर्म होता है। और वो यूएसपी जो है मतलब आपका यूनिक फैक्टर, आप जो किस चीज में अच्छे हो उस चीज में आपको ब्लॉगिंग करना है। चाहे आप कुकिंग में अच्छे हो, चाहे ट्रैवल में अच्छे हो, चाहे आपको कार का शौक है, चाहे बाइक्स पसंद है, चाहे आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, चाहे आप जो है किसी टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हो, चाहे आपको कंप्यूटर्स पसंद है या फिर हैंडसेट पसंद है। गाइस, ये पैशन है। ओके, हर किसी का इंटरेस्ट जो है अलग अलग होता है। ब्लॉगिंग इज पैशन। तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, पर्सनली मुझे डिजिटल मार्केटिंग पसंद है। ओके, आप में से कई लोगों को हैंडसेट पसंद होंगे, क्योंकि हैंडसेट हम लोग बहुत परचेस करते रहते हैं और उसको थ्रो एंड आउट यूज करते रहते हैं। सपोज आप लोग जो है किसी एक फील्ड में अच्छे हो, जैसे हैंडसेट में अच्छे हो, या फिर हम लोग लेते हैं ट्रैवल में अच्छे हो। सो ट्रैवलिंग में आप लोग को सोचना ये होता है कि आप किस तरह का ट्रैवल पसंद करते हो। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में आपको ब्लॉगिंग की शुरुआत कैसे करनी है उसके बारे में बता रहा हूं आपको मैं। अगर आप ट्रैवल पे ब्लॉग लिखना चाहते हो, आपको ट्रैवल पसंद है सिटी टू सिटी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस तरह का ट्रैवल। एक तो आप जंगल सफारी करना चाहते हो, जंगल में ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर आप सिटी में ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर आप
ठंडी जगहों में ट्रैवल पसंद करना चाहते हो, या वाइल्ड लाइफ में आप इंटरेस्टेड हो, गाइज ये ट्रैवल अलग अलग हो सकता है। ओके, और इसी में से आपको चूज करना है कि मेरी फील्ड कौन सी है। इसी को कहते हैं नीश, या उसके आगे जाके माइक्रो नीश। मतलब आप जब भी एक स्पेसिफिक फील्ड में अपने आप को सोचते हो कि ये मेरी पसंद है, ये मेरा पैशन है, तो उस पैशन के ऊपर में लिखना जब शुरू करोगे गाइज, तब वो हो जाती है ब्लॉगिंग। और जब ब्लॉगिंग करना शुरू करोगे आप, तो एक समय ऐसा आता है कि आपको गूगल कहता है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर में एड्स दिखाना चाहता हूं। मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूं, मेरी वेबसाइट, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर में एडसेंस का अप्रूवल है गाइस। 1 सेकंड, या सो हम लोग चलते हैं मेरी एक वेबसाइट के ऊपर में। ये वेबसाइट है मेरी डिजिटल गुरु संजोग, आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर। इस वेबसाइट के ऊपर में आपको कुछ एड्स दिख रही है, ये एड दिख रही है गोल्ड प्रिविलेज क्लब। ओके, इसके बाद में और एक एड दिख रही है, पार्टिसिपेट टू विन एन आईपॉड प्रो। तो ये एप्पल की एड चल रही है गाइस यहाँ पर। इसके बाद में मेरे ब्लॉग्स है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, एसईओ टेक्निक्स, डिजिटल न्यूज। इसके बाद में फिर से एक आईपॉड प्रो की जो है एड चल रही है। उसके बाद मेरे ब्लॉग्स आप देख सकते हो, ब्लॉग के बीच में आप एड्स देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर एक एड चल रही है, एलियट वेव फोरकास्ट, और ये होली जॉली एक एड दिख रही है। गाइज ये एड जो दिख रही है ये गूगल चला रहा है मेरे वेबसाइट के ऊपर में। मेरी ये वेबसाइट जो है वो मेरी पर्सनल वेबसाइट है, ओके, जहां पर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आर्टिकल्स लिखता हूँ। लेकिन यहाँ पर एड दिखाने का काम कर रहा है गूगल। तो मैं गूगल का पार्टनर बन चुका हूं, और गूगल मुझे इस एड दिखाने के लिए XYZ अमाउंट पे करता है। अब जैसे मैं यहाँ पर हूं, तो मेरे ये एड देख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो इस एड के ऊपर में जब मैं देख रहा हूं, व्यू कर रहा हूं, उसको कहते हैं इंप्रेशन। इंप्रेशन उसको कहते हैं कॉस्ट पर इंप्रेशन। तो मुझे गूगल कॉस्ट पर इंप्रेशन के फॉर्म में पे करता है। ओके, सीपीएम कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में सीपीएम। एक सीपीएम का मुझे पैसा मिल रहा है। ओके, इसके बाद में अगर मैं इस एड के ऊपर में अगर क्लिक कर दूं, कोई भी एड के ऊपर में अगर क्लिक कर दूं, तो उसको कहते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, या फिर उसको कहते हैं पे पर क्लिक। अब ये दोनों टर्म अलग है, सीपीएम और सीपीसी। ये व्यू करने का मतलब सीपीएम होता है, मतलब कॉस्ट पर इंप्रेशन, और क्लिक करने का मतलब होता है, किसी भी एड पे क्लिक करोगे उसका होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। तो गूगल मुझे दो फॉर्मेट में पे करता है, एक तो सीपीसी और दूसरा है पे पर क्लिक। अब कितना पे करता है मैं वो बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करो गाइस। मैं आपको लेके चलता हूं गूगल के ऊपर में, और ये गूगल 1 सेकंड, मैं आपको गूगल के ऊपर में लेके चलता हूं, और ये हम लोग आ चुके हैं गूगल के ऊपर में। अब यहां पर हम लोग है, यहां पे कुछ सर्च कर लेता हूं मैं यहाँ पर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये मैंने सर्च कर लिया यहाँ पर। और अब मैं आपको बताऊंगा और एक चीज, कुछ यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। ये ऊपर के ऑप्शंस को कहते हैं एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन। जो भी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है गाइस, उनको टूल्स को सीखना होता है। जैसे हम लोग किसी मैकेनिक के पास जाते हैं अपनी बाइक लेकर, और उसको कहते हैं कि भाई मेरी बाइक सुधार दे, तो वो अपने टूल्स यूज करता है, अपने पाने यूज करता है, और हमारे जो भी कार्बोरेटर में कचरा है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, पंक्चर है, वो निकाल कर हमको दे देता है। तो हम वो बोलता है कि 100 रुपया हो गया, तो हम लोग को 100 रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कि उसने एग्जैक्टली किया क्या है। ओके, तो वो उसके टूल्स जो है उसको पता होता है कौन से टूल कैसे यूज करके पैसे कमाए। उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के भी टूल्स होते हैं, जैसे प्लम्बर के टूल्स है, जैसे इलेक्ट्रिशियन के टूल्स है, जैसे डॉक्टर के टूल्स है, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग के भी टूल्स है। और उन टूल्स को कहते हैं प्लगइन्स या फिर क्रोम एक्सटेंशंस। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ऊपर में, ये क्रोम एक्सटेंशन है, जिनको यूज करके मैं थोड़ा सा सर्च करना चाहता हूँ, कीवर्ड रिसर्च। क्योंकि मुझे गूगल कितना पैसा पे कर रहा है इस एड के ऊपर में, ये अगर समझना है, तो मैं यहाँ पर एक कीवर्ड डाल दिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब देख सकते हो इसका ये जो दिख रहा है 9,900, ये है सर्च वॉल्यूम। इतने लोग सर्च करते हैं पर मंथ। और आप यहाँ पे देख सकते हो $1 यहाँ पर 1.22 सीपीसी है। अब और को दिखाता हूं आपको, देखिए गाइस, यहाँ पर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यूएसए। यहाँ पे 210 का सर्च वॉल्यूम है, 210 लोग ढूंढते हैं, लेकिन $3.5 $3.63 पैसा सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के ऊपर में मिलेगा। सिंगल क्लिक के ऊपर में $3.63 मिलेंगे। अगर इस वेबसाइट के ऊपर में यहाँ पे कोई क्लिक कर देता है, यहाँ पर कोई क्लिक कर दिया,
मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरी खुद की वेबसाइट है, गूगल ये बैन कर देगा मुझे, तो मैं खुद आपको यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर वेबसाइट ओपन करोगे अपने एंड पे और वहां पे मेरी वेबसाइट, और वहां पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो मुझे मिलेंगे 3.63। ओके, इस कीवर्ड के लिए, इसको कीवर्ड कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो हर एक कीवर्ड के अलग अलग रेट्स होते हैं गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया $0.92, $1.40, $0.88, $1.43, $1.6, तो ये पैसे यहां पर मिल रहे हैं पर क्लिक के हिसाब से, कॉस्ट पर क्लिक। कौन पे कर रहा है? गूगल। अब दोस्तों कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग कि सपोज मेरी वेबसाइट के ऊपर में 1000 लोग आ रहे हैं पर डे, 1000 लोग आ रहे हैं सपोज, तो पर डे के हिसाब से मुझे मिलते हैं 10%। अगर 1000 में से 10% लोग, ओके 100 लोग अगर मेरे वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो होता है 100 क्लिक्स। ओके, 100 क्लिक्स इंटू हम लोग $1 पकड़ के चलते हैं, $100। ओके, अब $100 इंटू 80 रुपीज, तो गाइस कितना अमाउंट हुआ? आवाज आ रही ना मेरी गाइस? थोड़ा इंटरेक्शन कर सकते हो आप लोग। ओके 8000। राइट, कोई तो है। चलो 8000 रुपया जो है मुझे मिल रहा है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि 8000 रुपए इनिशियली नहीं मिल रहे हमको, 1000 लोग नहीं आ रहे। ओके, हम लोगों के पास में 500 लोग आ रहे हैं। ओके, उसका 10% हुआ 4000 पर डे। ओके, 500 भी नहीं आ रहे, हमारे पास 250 आ रहे हैं, तो उसका हुआ 2000 पर डे। अगर 250 भी नहीं आ रहे, उसका आधा करते हैं 125, तो मेरे पास में 1000 रुपए आ रहे हैं। गाइस 500 रुपए भी आएंगे आपके पास में, तो भी अगर 30 डेज के साथ कैलकुलेट करते हो, अगर 100 रुपीज भी आते हैं पर डे आपके पास में, तो भी अगर आप 30 डेज के साथ, मतलब एक ही क्लिक मिल रहा है आपको, एक ही डॉलर मिल रहा है पर डे, एक ही क्लिक मिल रहा है, तो 100 रुपीज इंटू 30 डेज 3000 रुपीज, 3000 रुपीज का इनकम जनरेट होता है गाइस, अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हो तो। वो भी कैसे ब्लॉगिंग करना है? ऐसे ब्लॉगिंग साइट, सिंपल साइट है गाइस, सिंपल, इस साइट के ऊपर में ज्यादा खर्चे नहीं किए मैंने। यहाँ पर आप कोई भी मेरा ब्लॉग ओपन करके देख सकते हो, हाउ टू इंस्टॉल एसएसएल सर्टिफिकेट, मल्टीपल ब्लॉग्स यहाँ पर दिखेंगे आपको, और हर ब्लॉग के ऊपर में आपको एड्स दिखाई देगी। ओके, अब यहाँ पे एड दिखाई दे रही है नीचे में, नेमचिम्प अगेन ये डोमेन कंपनी है और डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग है, इसलिए ये ऐड कर रही है। इसके ऊपर में कोई क्लिक करेगा तो मुझे मिलेगा पैसा। ओके, तो इसका मुझे मिलेगा पैसा। तो कोई भी ऐड के ऊपर मैं जाऊं, यहाँ पे एक इंडस करके एक ऐड चल रही है, तो लोग यहाँ पर आते हैं और इंप्रेशन को तो मिल ही रहे हैं पैसे। तो इस तरह से गूगल एडसेंस मुझे पैसे पे कर रहा है ब्लॉगिंग के थ्रू। तो ये गूगल एडसेंस हो गया, इसको एडसेंस कहते हैं। जो बंदा हमको पैसे पे कर रहा है, गूगल का जो नेटवर्क या जो प्लेटफॉर्म पे कर रहा है हमको, उसको कहते हैं गूगल एडसेंस। वो मुझे पे कर रहा है ब्लॉगिंग के लिए इतने पैसे। अब मेरे वेबसाइट के ऊपर में जितनी ज्यादा ट्रैफिक आएगी उतने ज्यादा क्लिक्स आएंगे, जितना अच्छा कंटेंट लिखेंगे हम लोग उतना ज्यादा पैसा मैं अर्न कर सकता हूं। लेकिन अगेन कंटेंट लिखने का मतलब क्या होता है गाइस? कंटेंट वो होगा जो एंगेजमेंट क्रिएट करता है, जो आपका जो ऑडियंस है, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर में आ रहा है, उसके साथ में अटैचमेंट क्रिएट करता है, एंगेजमेंट क्रिएट करता है, तभी तो लोग बार बार आपकी वेबसाइट पे आएंगे। और दूसरा, आपको बार बार फ्रीक्वेंटली आपको ब्लॉग्स लिखते रहने पड़ेंगे, वीकली वंस, ओके, या फिर 3 दिन में एक बार। इनिशियली जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपको जो है इनिशियली वीकली वंस की जगह वीकली ट्वाइस ब्लॉग लिखने होंगे। ओके, 2-2 ब्लॉग लिखने होंगे कम से कम। ब्लॉग की जो लिमिट्स होंगी वो होगी 1000 वर्ड्स के ब्लॉग होने चाहिए मिनिमम इनिशियली। बाद में 500 वर्ड्स की भी लिख सकते हो आप, लेकिन इनिशियली ये कंडीशन है गाइस, मैं बता रहा हूँ एडसेंस की कंडीशंस। 1000 ब्लॉग्स होने चाहिए 1000 वर्ड्स के, और कम से कम 15 ब्लॉग लिखना है। 15 ब्लॉग लिखे 1000 वर्ड्स के, और सबसे इंपॉर्टेंट वो यूनिक होने चाहिए, किसी के कॉपीड नहीं होने चाहिए। अगर किसी के कॉपी करके लेकर आते हो, गूगल आपको एडसेंस का अप्रूवल कभी भी नहीं देगा। वो खुद का कंटेंट होना चाहिए, खुद का लिखा होना चाहिए। अब खुद का कंटेंट क्रिएट तभी करोगे गाइस जब आप अपने पैशन में काम करोगे। आगे मैं पैशन के ऊपर में आ गया। जब आप पैशन में काम करोगे तो आप खुद का, मतलब ब्लॉगिंग अगर करनी है तो आपको सोचना है कि आने वाले 5 साल के लिए ब्लॉगिंग करने वाला हूं मैं, आने वाले 10 साल के लिए ब्लॉगिंग करने वाला हूं। ये ऐसा नहीं कि 2 ब्लॉग लिख ले और सो गए, ऐसा वाला काम नहीं है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में आपको सालों साल देने पड़ेंगे। ओके, हमेशा लिखते रहना पड़ेगा, और ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक के साथ पैसे आएंगे तो डेफिनेटली आप करोगे।
लेकिन आपको मजा तब आएगा जब आप अपने पैशन के ऊपर में लिखो। मेरे एक स्टूडेंट है रोहित करके, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था, उनका माइक्रोनिश कहूंगा मैं, नींद के ऊपर में। मैंने उनको पूछा कि आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नींद पसंद है। तो मैंने कहा कि, फिर उन्होंने पूछा मैं नींद के ऊपर मैं ब्लॉग लिख सकता हूँ क्या? तो मैंने कहा कि आप लिख सकते हो नींद के ऊपर में ब्लॉग। तो उन्होंने कहा कि टॉपिक्स कैसे होंगे? तो मैंने कहा बहुत से टॉपिक्स हो सकते हैं नींद के ऊपर में। तो कुछ पोर्टल्स है जहां पर मल्टीपल टॉपिक्स आप जनरेट कर सकते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर में, जैसे हाउ टू स्लीप वेल, ओके, हाउ टू वेक अप अर्ली, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। तो उन्होंने उस टॉपिक के ऊपर में ब्लॉग्स लिखना शुरू किए और वो ही गॉट पॉपुलर इन दैट सेम डोमेन। ऐसे बहुत से लोग हैं। जैसे एक मेरे स्टूडेंट है जो आए थे, जो एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो वो डॉक्टर से मीटिंग करने जाते हैं, तो डॉक्टर की मीटिंग का जो हाफ एन आवर पहले जो उनको वेट करना पड़ता है, तो वहां पर भी मोबाइल के ऊपर में ब्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। गाइस ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास में, मेरे स्टूडेंट्स, जो बहुत सी ब्लॉगिंग करते हैं, ओके, बहुत अच्छी तरह से ब्लॉगिंग करते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर में। कोई ट्रैवल के ऊपर में, कोई नागपुर के ट्रैवल स्पॉट्स के ऊपर में लिखना चाहता है, कोई कोई एनिमल्स के लिए लिखना चाहता है, कोई एनिमल लवर है तो डॉगीज के ऊपर में ब्लॉग लिखना चाहता है। अनलिमिटेड टॉपिक्स। तो किसी भी क्योंकि हर टॉपिक का एक स्पेसिफिक ऑडियंस होता है। और जब आप इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में लिखोगे, एंटरटेनिंग टॉपिक के ऊपर में लिखोगे, तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे गूगल की तरफ से रेवेन्यू, पैसा, और उसी को कहते हैं एडसेंस। ओके, सो ये है ब्लॉगिंग गाइस। मैं नेक्स्ट आपको फिर से बताऊंगा, वो है नेक्स्ट जो जिसके थ्रू आप अपना करियर करना चाहते हो, वो है यूट्यूब। गाइज अभी आप स्टूडेंट्स हो और आई थिंक हम लोग यूट्यूब के ऊपर में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो टॉपिक डिस्कशन हो, या चाहे आपको किसी को बारे में पढ़ना हो, चाहे मूवी देखना हो, चाहे कुछ सीखना हो। इनफैक्ट आई थिंक मैंने ऐसे भी देखा है, क्योंकि हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो कई सारे लोग आते हैं यहाँ पर जो पाइथन में कोडिंग करते हैं, और पाइथन कोडिंग सिर्फ वो यूट्यूब के ऊपर में सीख के आ जाते हैं, और फ्री में यूट्यूब के ऊपर डेफिनेटली। और वो लोग बहुत अच्छा कोडिंग कर लेते हैं यहाँ पर आने के बाद में। जब प्रैक्टिकली करने की बारी आती तब भी कर लेते। तो फ्री में भी आप जो है, अगर आपको पैसे खर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है, सपोज किसी कोचिंग में जाना प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पर, या आपके फाइनेंशियल जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है गाइस, तो आज की दुनिया में हम लोग किसी भी, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं पाया। ये गलत होगा, ओके, क्योंकि हम लोग पैसे के बगैर भी मतलब बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर में, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप फ्री में नॉलेज ले सकते हो। लेकिन डेफिनेटली आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वहां पे एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ट्रेन करने के लिए कोई नहीं है यूट्यूब के ऊपर में। अगर आपको इश्यूज आते हैं तो आपके इश्यूज जो है वहीं पे रुक जाते हैं। तो कोई तो ऐसा गाइड करे आपको, जो बेहतर ढंग से आपको सब बताएं, उसके लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करना होता है। लेकिन नहीं भी करते हो सपोज, तो आपको यूट्यूब के ऊपर में बहुत सारे वीडियोज मिल जाते हैं। अब दोस्तों यूट्यूब के ऊपर में पैसे कैसे कमाते हैं, ये भी है एडसेंस के थ्रू। मैंने मेरा यूट्यूब का अकाउंट ओपन करके रखा है ताकि आप लोगों को दिखाऊं मैं। ये मेरा यूट्यूब का अकाउंट है गाइस, और ये मेरा लास्ट वीडियो रहा है। आई थिंक मुझे लगता है ये आज का वीडियो है, शायद हाँ कल का वीडियो है। 1 डे 22 आवर्स हो गए। इज योर फेसबुक एड अकाउंट डिसेबल्ड? ओके, अब मुझे जो है रेवेन्यू आपको दिखाऊंगा मैं। मुझे मिल रहा है $26.50। ये एक्चुअल डेटा है गाइस, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। $26 मिल रहे हैं, ओके। और अगर मैं अपने बाकी वीडियोस पे दिखाऊं, बाकी वीडियोस जो है मेरे, मतलब मल्टीपल वीडियोस है अकाउंट, आप देख सकते हो। ये मुझे टोटल जो है अभी तो है वॉच टाइम, जो है ये वॉच टाइम होता है, जो मतलब कितने घंटे का कंटेंट लोगों ने देखा है। 363 आवर्स का कंटेंट देख चुके हैं। अगर मैं इनको बेटर वे में एनालाइज करूं, ये एनालिसिस पार्ट है गाइस। आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस को एवरी आर में इतने सारे लोग देख रहे हैं। देख सकते हैं आप, कल वेडनेसडे था, तो कल परसों, ओके आज फ्राइडे है, तो परसों जो है 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में 44 लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, ओके। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर रात को भी मेरे वीडियो, जब हम लोग सोए रहते हैं तब भी कोई ना कोई वीडियो देख रहा है। जैसे रात को 3:30 से 4:30 बजे के आसपास वीडियोस देखे जा रहे हैं। और वो वीडियोस, एक मिनट, मैं कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर घंटे मुझे इनकम हो रहा है, ओके। और ये इनकम हो रहा है यूट्यूब की वजह से, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस बनाता हूँ। अभी भी लास्ट 60 मिनट्स में 1 2 3 4 5 लोगों ने वीडियो देखा है। तो इस घंटे में 5 लोगों ने, मतलब कोई ना कोई एट प्रेजेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लाइव कोई वीडियो देख रहा है मेरे, ओके। अब ये वीडियो जब देखते हैं गाइस, तो मुझे मिलते हैं
यहाँ पर एड्स रन होती है, और एड्स रन होती है तो मुझे मिलता है इनकम, पैसा जनरेट होता है। ओके, और रेवेन्यू जनरेट होने के बाद में, अच्छा अब मैं आपको बताऊंगा मेरी स्टोरी। 1.5 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे कई सारे लोग बोलते थे कि आप यंग नहीं हो, आप यूट्यूब चैनल बना रही हो, तो यंगस्टर्स का काम है, यंगस्टर्स ने बनाना चाहिए वीडियोस। तो लेकिन मेरी कलीग जो है वो, हम लोग काफी सोच रहे थे कि नहीं, हम लोगों को एक चैनल बनाना है, चाहे कोई भी एज हो। ओके, तो हम लोगों ने चैनल जब बनाया तो काफी लोग हंसा करते थे यार कि यार क्या कर रहे हो, ये यूट्यूब का चैनल बना के क्या फायदा होने वाला है। लेकिन गाइस अब वही लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे सर्विसेज के लिए आप कोई वीडियो बनाओ। ऐसे बहुत से अकाउंट है गाइस, ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो हमारे पास जुड़ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो ब्रांड्स, और हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है, आप ये देख सकते हैं गाइस, ये इन वीडियो है, और इन वीडियो अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियो एडिटिंग टूल है, यूएस की कंपनी है, वो हमको फॉलो कर रही है कि हम लोग उनके लिए वीडियोस बनाएं, ताकि लोग वीडियोस देखें, हमारे सब्सक्राइबर्स, और उनको बेनिफिट हो, और वो हम लोगों को पे करे। तो XYZ अमाउंट जो है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, उन्होंने मेल किया हुआ है मुझे, आई एम अंकित फ्रॉम मोगी, दिस इज फॉलो अप मेल। सो आप देख सकते हैं कितने सारे फॉलो अप मेल आते हैं। November 17 को आया था लास्ट टाइम मेल। ओके, उनका कहना था, आप देख सकते, पढ़ सकते हैं, आई होप यू गॉट माई प्रीवियस मेल अबाउट कोलैबोरेशन विथ योर यूट्यूब चैनल। सो इस तरह से जो है लोग कोलैबोरेट होना चाहते हैं हमारे साथ, मेरे चैनल के साथ में, और लोग पैसे पे करने के लिए रेडी है, ताकि मैं उनके लिए वीडियोस बनाऊं और अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाऊं। ओके, अब मुझे दो तरह से रेवेन्यू होगा यहाँ पर। एक तो यूट्यूब खुद पे करता है एड्स के लिए, जो वो मेरे चैनल के ऊपर में जो एड रन होती है उसके लिए पे कर रहा है, और साथ में ये लोग एक्स्ट्रा मुझे अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। मेरे सब्सक्राइबर जो देखेंगे, जितने व्यूज मिले उनके ऊपर में एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। सो गाइज, ये है यूट्यूब का पावर। अगर मैं ऐसा हमेशा कहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को या फिर मेरे एम्प्लॉयज को, कि हम लोग जो है यूट्यूब देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। अगर अरिजीत सिंह का वीडियो देख रहे हो आप, या कोई मूवी देख रहे हो, तो अरिजीत सिंह को डेफिनेटली फायदा होने वाला है, क्योंकि उसको एक व्यू मिलने वाला है, और व्यू के साथ साथ उसको इनकम होने वाला है, क्योंकि आप एड्स भी देख रहे हो। तो अरिजीत सिंह इज मेकिंग मनी, दैट टी सीरीज, जो जो मूवी कंपनी होगी, या यशराज होगा, या फिर करण जौहर होगा, वो अपनी मूवीज दिखाते हैं यूट्यूब के ऊपर में, सॉन्ग्स दिखाते हैं और अर्निंग करते हैं हमारे थ्रू। हम लोग उनका कंटेंट वॉच करते हैं, इसलिए उनको पैसे मिलते हैं गाइस। लेकिन आप लोग अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकते? मतलब हम लोग खुद के वीडियोस बनाकर क्यों नहीं उसमें अर्निंग कर सकते हैं? मतलब क्यों सिर्फ करण जौहर ही पैसा कमाए, क्यों शाहरुख खान ही पैसे कमाए, हम लोग पैसे क्यों ना कमाए यूट्यूब से? ये आपको सोचना है गाइस। ओके, बिकॉज यू आर क्वाइट यंग एंड यंग माइंड, यू मस्ट बी हैविंग मल्टीपल टॉपिक्स। नो नीड टू क्रिएट वीडियोस जो है वो फनी वीडियोस होने चाहिए, कुछ एक्टिंग कैपेबिलिटी जरूरी नहीं है गाइस। मुझ में कोई एक्टिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है डिजिटल मार्केटिंग, और ये मेरा पैशन है, इसलिए आई एम मेकिंग मनी ऑन यूट्यूब। सो दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ यूट्यूब। सोशल मीडिया गाइस, अगेन सोशल मीडिया क्वाइट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जब भी सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हमारे पास सामने आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसके अलावा है ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स है गाइस। और एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं पॉडकास्ट, पॉडकास्टिंग, जो यूट्यूब को कंपटीशन दे रहा है यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट सुनते हैं। पॉडकास्ट मतलब ऑडियो फाइल्स, यूट्यूब मतलब वीडियो फाइल्स। सो ऑडियो फाइल्स क्रिएट करके आप, कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स है Anchor.fm जैसे, जहां पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, पॉडकास्ट बना सकते हो। जो लोग यूट्यूब में वीडियो में के फॉर्म में आना पसंद नहीं करते, जिनको यूट्यूब, उनको लगता है यार हम लोग जो है कैमरा फेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है जिसको कहते हैं पॉडकास्ट, और इंडिया में भी काफी पॉपुलर हो रहा है। स्पॉटिफाई आपने सुना होगा, आपको पता होगा स्पॉटिफाई गाइस। और स्पॉटिफाई में भी मेरा एक अकाउंट है गाइस। अगर आप डिजिटल गुरु संजोग वहां पर भी डालोगे स्पॉटिफाई पे, तो वहां पर भी आपको जो है मैं दिखूंगा स्पॉटिफाई के ऊपर में। एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूं पॉडकास्ट का चैनल Anchor.fm, जो स्पॉटिफाई की कंपनी है, उसको ओपन कर रहा हूं मैं, और वहां पे मेरे वीडियोस है गाइस, सॉरी ऑडियो फाइल्स है, और वहां पर जितने लोग सुनते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरे ऑडियो फाइल सुनी जा रही है डेली बेसिस के ऊपर में। और मैंने पिछले साल भर में सिर्फ 5 ऑडियो फाइल्स अपलोड किए हैं यहाँ पर,
लेकिन आई एम मेकिंग मनी। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे ऑडियो फाइल जो सुने जा रहे हैं 55%, इंडिया में 32%, जर्मनी, टर्की, बांग्लादेश, फिनलैंड, साउथ कोरिया, कनाडा, सभी कंट्रीज में कुछ ना कुछ मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्पॉटिफाई के ऊपर में सबसे ज्यादा सुनते हैं मुझे 12%, गूगल पॉडकास्ट के ऊपर में 12%, वेब ब्राउजर 9%, ओवरकास्ट, इस तरह के डिफरेंट स्पॉटिफाई पॉडकास्टिंग चैनल है जहां पर मुझे सुनाया जा रहा है। तो ये है पॉडकास्ट गाइज, और ये भी एक सोशल मीडिया का फॉर्मेट है जहां से आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगेन आपको अपने पैशन को फॉलो करना होगा, पैशन से रिलेटेड ऑडियो फाइल्स बनानी होगी, रेगुलर बनानी होगी, अपना एक ऑडियंस, आपका एक सब्सक्राइबर बेस क्रिएट करना होगा। तो सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है आपके लिए, इंस्टाग्राम ही नहीं है, फेसबुक ही नहीं है, बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गाइस जहां पर आप जो है अर्निंग कर सकते हो। इनफैक्ट आप जो है लिंक्डइन के ऊपर में भी अर्निंग कर सकते हो। अगर आप लोगों को लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट करना नहीं आता है गाइस, तो वहां पे मैं हेल्प कर सकता हूं आपको, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं करूंगा डेफिनेटली आपको, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो। तो आप मेरा यूट्यूब लिंक्डइन चैनल, लिंक्डइन जब प्लेटफॉर्म जो जाके विजिट कीजिए, डिजिटल गुरु संजोग ढूंढिए या संजोग मेश्राम ढूंढिए, आपको मैं मिल जाऊंगा। पिंटरेस्ट के ऊपर में भी ढूंढ सकते हो मुझे डिजिटल गुरु संजोग के नाम से, जहां पर मैं पिंटरेस्ट का चैनल ओपन करके दिखाता हूं आपको मैं, ताकि आप देखिए कि मुझे पिंटरेस्ट के ऊपर में, अब पिंटरेस्ट के ऊपर में काम ऑलरेडी मैंने बंद कर दिया है, टाइम नहीं मिलता इतना सारा कि सभी प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करूं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो आप देख सकते हैं 36,000 व्यूज आए हैं मंथली मुझे, बिना कुछ किए। मैं ज्यादा कुछ काम कर नहीं रहा हूं यहाँ पर, ओके, लेकिन इतने सिर्फ फॉलोअर्स है 1.4 थाउजेंड, उसमें से 36,000 मंथली व्यूज आ रहे हैं मुझे। और यही है गाइस पिंटरेस्ट का कमाल। ओके, तो पिंटरेस्ट के ऊपर में व्यूज आते हैं आपके इमेजेस के ऊपर में। और अगर मैं आपको एनालिटिक्स में दिखाऊं, यहाँ पर ओवरव्यू में चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह का ऑडियंस मेरे पास में आता है। और आप देखिए ये डेली बेसिस के व्यूज हैं, ये इंप्रेशन देख सकते हैं आप ये कर्व में। ओके, और आप देखिए यहाँ पर पिंटरेस्ट में मोस्टली आई थिंक फीमेल ओरिएंटेड जो ट्रैफिक होती है वो ज्यादा होती है, नियरली 70% फीमेल ओरिएंटेड ट्रैफिक आती है और 40% मेल ओरिएंटेड ट्रैफिक आती है। तो इसलिए यहाँ पर फैशन और हिना डिजाइन से रिलेटेड पोस्टिंग की हुई है। ओके, ये मेरे अकाउंट से है गाइस। अब मैंने वो किया है यहाँ पर जो लोगों को पसंद है। तो आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सिंपल डिजाइन, ब्राउन ड्रेसेस, न्यू पैटर्न, इस तरह के कुछ डिजाइन यहाँ पे डाले हुए हैं, और इसके ऊपर में इंप्रेशन आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो दिख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के मेरे कुछ वीडियोस हैं यहाँ पर, कीवर्ड रिसर्च, वहां पर भी इंप्रेशन आ रहे हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि मल्टीपल वीडियोस के ऊपर में इंप्रेशन आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप पिंटरेस्ट के ऊपर में भी अपना करियर या फिर अपना सोशल मीडिया का करियर शुरू कर सकते हो। गाइस अगेन मैं जो भी चीज बता रहा हूँ वो मेकिंग मनी, पैसे कमाने के हिसाब से बता रहा हूँ, या फिर अपने करियर के लिए ही बता रहा हूँ। जितनी भी कंपनीज है गाइस, जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो स्विगी हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे अमेजोन हो, वो लोग जो है वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए आप वो सोशल मीडिया मैनेजर हायर करते हैं, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हायर करते हैं, और हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग एग्जीक्यूटिव होता है। तो और उनको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है उसके लिए। इसलिए आपका जो पैशन है गाइस उसमें फॉलो कीजिए हमेशा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ईमेल मार्केटिंग। अगेन ईमेल मार्केटिंग आप सबको पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा तो आप जीमेल अकाउंट में जाके चेक कर सकते हो अपने, और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग के टूल्स या फिर ईमेल मार्केटिंग। जैसे आप देख सकते हैं HDFC लाइव, इन्होंने मेल किया है मुझे, और ये है ईमेल मार्केटिंग का एक एग्जांपल। तो ऐसे ईमेल मार्केटिंग बनाने होते हैं, और उसके लिए कुछ टूल्स है जिसका नाम है मेलचिम्प, Aweber, इस तरह के टूल्स है जो फ्री में भी आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग मतलब आप अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए ईमेल्स भेज रहे हो, और उसके थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद में मोबाइल मार्केटिंग। गाइस प्लीज बी ऑन द म्यूट, जो भी अपना आई थिंक काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज म्यूट में रहिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप बीच में आकर। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी राइट अवे। ओके गाइस, सो मोबाइल मार्केटिंग। अगेन मोबाइल मार्केटिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोग जो है अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन करते हो तो मोबाइल ऐप होना जरूरी है। मोबाइल ऐप हो तो मोबाइल ऐप में आप जो है मल्टीपल एड्स दिखाकर वहां पर भी एडसेंस के थ्रू आप पैसे अर्निंग कर सकते हो मोबाइल मार्केटिंग में।
उसके बाद में है, मैं थोड़ा फास्ट लेके चलता हूँ ताकि हम लोग जो है बाकी चीजें भी समझे। ई कॉमर्स मार्केटिंग, जैसे न्यूज लेटर्स है, एसएसएल इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों ई कॉमर्स मार्केटिंग में। आपकी वेबसाइट के ऊपर में अगर ई कॉमर्स करते हो आप, अगेन ई कॉमर्स की साइट फ्री में कैसे बनाना है उसके भी कुछ वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में, आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो फ्री में ई कॉमर्स की साइट विदाउट। अच्छा, मैं और एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को कि अगर आप लोगों में से कोई नॉन टेक्निकल है तो क्या वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है? ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं एक्चुअली, कि हमारा बैकग्राउंड नहीं है इंटरनेट का या फिर कंप्यूटर का, क्या हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं? तो गाइज मेरा क्वेश्चन है यस, क्योंकि मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगा। आई एम बेसिकली आई डिड माय ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, और हम लोग कंप्यूटर के टॉपिक से भागते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स। लेकिन फिर भी अभी आई एम फाउंडर ऑफ डेवलपमेंट कंपनी प्लस आई एम डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइज, क्या मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आता है? तो डेफिनेटली मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, और वेबसाइट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। अब वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आपको जरूरी नहीं है कि टेक्निकल नॉलेज आना जरूरी है गाइज। वेबसाइट डेवलपमेंट के कुछ प्लेटफॉर्म्स है वर्ल्ड वाइड, ओके, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर में जाकर आप बिना किसी टेक्निकल स्किल के अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अब वेबसाइट बनाना है तो आप जो है पे करते हो बाहर 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। वेबसाइट जिस तरह से बनती है उस तरह से लोग चार्ज करते हैं। लेकिन क्या आपके पास में तो उतने पैसे होंगे नहीं क्योंकि आप स्टूडेंट हो, तो क्या अगर ब्लॉगिंग करने के लिए वेबसाइट बनानी कैसी है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता होगा। ओके, तो उसके लिए मेरे पास में एक आंसर है गाइस, वो मैं बताता हूं। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, लेकिन प्रमोशन हो भी रहा है तो भी अच्छा ही है गाइस। ओके, आपको बताना चाहता हूं मैं कि एक सीरीज बनाई है मैंने यहाँ पर, आपको प्लेलिस्ट में जाइए मेरे, और वहां पर आपको दिखाई देगी वो सीरीज में वर्डप्रेस। आप देखिए वर्डप्रेस सीरीज, अभी तक उसमें कुछ 9-10 वीडियोस आए हुए हैं। इस सीरीज में आप सीखोगे कि किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, तो आपके पास में वेबसाइट होना चाहिए, और वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट डेवलपमेंट आना चाहिए, और वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो आप ये वीडियोस देखकर भी वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे बनाते हैं सीख सकते हैं। और उसके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज होता है वो है वर्डप्रेस। ये जो W दिख रहा है उसको कहते हैं वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के अलावा भी प्लेटफॉर्म है, जैसे है blogger.com। blogger.com के ऊपर में वर्डप्रेस आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो, वर्डप्रेस में भी बना सकते हो, लेकिन वर्डप्रेस ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन यहाँ पे वर्डप्रेस के ऊपर में थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फ्री में कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा गाइज मैं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। फ्री में जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनानी होती है उसके भी वीडियोस बना चुका हूं मैं। लेकिन ये सीखने के लिए पहले तो आपको सोचना है कि मुझे माइक्रो नीश क्या है, मतलब मुझे कौन से टॉपिक में वेबसाइट बनानी है, तभी आप वेबसाइट बना पाओगे। सो वेबसाइट डेवलपमेंट इज अगेन अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगेन नो कोडिंग रिक्वायर्ड, आपको कोडिंग आना जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, जिस तरह से आप जो है अपने सपोज आपको घर में बुक्स क्रिएट करनी है, मतलब आप बुक्स बना लेते हो या फिर कोई नोट्स बना लेते हो, उतना ही इजी है वेबसाइट डिजाइन करना। वेबसाइट डिजाइन जो है सिंपलेस्ट तरीके से गाइज आप सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अपनी खुद की वेबसाइट, जैसे मैंने ये वेबसाइट दिखाई, मेरी वेबसाइट, ये सिंपल वेबसाइट है, यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं इस वेबसाइट के ऊपर में। और इस वेबसाइट के ऊपर में आप जो है आराम से ये भी वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर में बनी हुई वेबसाइट है। इसमें ये फ्रंट एंड है गाइस, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये देखिए ये वेबसाइट है। अगर इसका बैकएंड वर्डप्रेस की वेबसाइट बनती कैसे वो भी एक मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। इसका बैकएंड दिखा देता हूं इस वर्डप्रेस का, मतलब बैकएंड मतलब इसका सीएमएस का, सीएमएस जो है वो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस का बैकएंड में जाना होता है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पे आपको जरूरत होती है दो चीजों की, एक तो है डोमेन की और दूसरा है होस्टिंग की। और डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम, आप लोगों को पता होगा शायद, बहुत लोगों को डोमेन क्या होता है। जैसे www.digitalgurusanjog ये डोमेन है, जैसे www.zapcode.com ये हमारी कंपनी की साइट है, ये डोमेन है। तो ये डोमेन है, तो आपको डोमेन परचेस करना होता है। डोमेन कहां से परचेस करना है ये भी अगर किसी को पता नहीं होगा गाइज, तो सिंपल गूगल में जाओ, GoDaddy डालो, GoDaddy तो आपको पता होगा, GoDaddy में आ जाओ, उसका साइट ओपन कर लो GoDaddy का। बहुत इजी है गाइज, ओके, बहुत इजी है, और ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल है।
मतलब थोड़े पैसे लगेंगे, लेकिन नॉलेज फ्री में अवेलेबल है। अब सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग गुरुज, ओके .com, ये मुझे डोमेन मिला है अवेलेबल कि नहीं चेक करते हैं। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डोमेन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग गुरुज ओके .in ये अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट है 149 रुपीज। तो गाइज 149 रुपीज में आप डोमेन परचेस कर सकते हो, और ये तो आपके एक मूवी के खर्चे से भी कम है। अगर आप मूवी देखना चाहते हो तो 250 रुपीज लगेगा आपको किसी भी मल्टीप्लेक्स में, 200-300 रुपए से ज्यादा खर्च होता है, उससे भी कम खर्चे में आप डोमेन परचेस करते हो। अब गाइस आप ये सुनो कि इतने पैसे खर्च करके अगर आपको डोमेन मिल रहा है तो लेना चाहिए, और फ्री में कैसे वेबसाइट बनाना है वो मेरे वीडियोस में आप देख लोगे। ओके तो एक बार आपके पास डोमेन आ जाए तो उसको आपको इंस्टॉल करना होता है होस्टिंग पे। होस्टिंग मतलब सर्वर। अब सर्वर भी गोडैडी का ले सकते हो, और सर्वर अगर लेना है तो इस पे सर्वर पे खर्चा होता है गाइस। सर्वर पे आपको 600-700 रुपया पर मंथ का खर्चा होगा, लेकिन अगर आपको टोटल खर्चा अगर पकड़ू मैं तो 7,000 to 8,000 रुपीज पर ईयर का खर्चा आएगा एक वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। डेवलप करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, डोमेन प्लस होस्टिंग ये दोनों चीजें लेने के लिए आपको 6-7 हजार रुपए का खर्चा होगा पर ईयर। लेकिन गाइस जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया है, अगर आपका कोई ब्लॉग क्लिक हो जाता है उसके बाद ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है तो ये खर्चा बहुत कम है। और कोई भी बिजनेस आई थिंक मैं आपको बताऊंगा कि मतलब मेरे लिए वेबसाइट मतलब दुकान है, और गूगल मतलब चौक है। जैसे आपका अमरावती में कुछ चौक पता है, मुझे ज्यादा पता नहीं अमरावती के बारे में, लेकिन जहां पर मुझे पता है कि जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का एरिया है वो गाड़गी नगर, ये मुझे पता है क्योंकि वहां से बाईपास होता है। हम लोग मुंबई जाना है मुझे तो मैं मुंबई वहीं से हाईवे लेता हूँ, तो गाड़गी नगर का जो स्क्वायर है सपोज वहां पर आपको वो जो चौक है वो है गूगल का चौक, मतलब गूगल का फर्स्ट पेज। ये जो गूगल के ऊपर में हम लोग आते हैं, फिर से लेके चलता हूँ मैं गूगल के ऊपर में आपको, ताकि आपको बताऊं कि चौक क्या होता है। ओके ये एसईओ गाइस, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मैंने टाइप कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 10 वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके और यहाँ पे नीचे एड्स दिख रही है, ये एड्स है, 3 एड्स ऊपर नीचे दिख रही है, और ये सर्विसेज है। तो ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ओके ये वेबसाइट यहाँ पे रैंक होती है, रैंक मतलब यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ये रैंकिंग मिली हुई है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, ऐसी रैंकिंग मिली हुई है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं तो फिर से 10 साइट रहेंगी, लेकिन नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते ही नहीं है गाइस। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले हम लोग कीवर्ड चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं कीवर्ड, इसको चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि पूरी ट्रैफिक जो है वो फर्स्ट पेज पे ही आती है। 99% लोग जो है फर्स्ट पेज के सेकंड पेज पे जाते ही नहीं है, फर्स्ट पेज पे ही रहता है। तो ऐसे वक्त में मैक्सिमम ट्रैफिक फर्स्ट पेज पे आ रही है, तो फर्स्ट पेज पे कैसे आए ये डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसको कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गाइस ये जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे चौक है आपका गाड़गी नगर का, वहां पर मल्टीपल शॉप्स होंगी, उस शॉप के ऊपर में अच्छी खासी ट्रैफिक भी आती होगी क्योंकि वो चौक है। लेकिन चौक से पीछे वाली जो गली होगी जहां वहां पर कोई शॉप्स होंगे वहां पे ट्रैफिक कम आती है, तो पीछे वाली शॉप जो है वो ये है सेकंड पेज जहां पे ट्रैफिक कम है। थर्ड पेज पे और पीछे वहां पे कोई नहीं जाता। अगर आपको बिजनेस करना है तो चौक में आना है, लेकिन चौक में अगर बिजनेस करना है तो आपको चाहिए एक्स्ट्रा पैसे, क्योंकि चौक में रेंट ज्यादा होता है, रियल एस्टेट के रेट जो है ज्यादा होते हैं, तो आप वहां पे आ नहीं सकते। तो वहां पे वेल एस्टेब्लिश प्लेयर जो है ऑलरेडी बसे हुए हैं, उनकी दुकान है, उनकी शॉप्स वहां पर है, लेकिन वहां पर वो लोग अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो दुकान छोड़ने वाले भी नहीं है, तो आपको चौक में जगह मिलना मुश्किल है। लेकिन गूगल के इस चौक में मतलब इस फर्स्ट पेज के ऊपर में आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। ये फर्स्ट पेज पे दिखाई दे रहे हैं आज, लेकिन कल दिखाई दे जरूरी नहीं है। आप अच्छी मेहनत करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, अच्छे आर्टिकल्स लिखोगे, एसईओ के रूल्स फॉलो करोगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रूल्स फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आप जो है फर्स्ट पेज के ऊपर में आना शुरू हो जाओगे। और इसी को कहते हैं दोस्तों गूगल का चौक। मेरी लैंग्वेज में, ये मेरी लैंग्वेज में है, जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं इसको चौक ही कहता हूं, क्योंकि ये चौक ही है। क्योंकि अगर 1 करोड़ लोग यहां पर आ रहे हैं तो 1 करोड़ लोग चौक में ही आते हैं, वहीं पे ट्रैफिक करते हैं। कोई भी नागपुर हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, कोई भी सिटी, वहां पर फेमस चौक होते हैं। जैसे नागपुर में बर्डी एरिया है, या धर्मपेट, ये नागपुर के एरिया है। या फिर अगर हम लोग मुंबई की बात करें तो लिंकिंग रोड, फैशन स्ट्रीट, इस तरह के स्ट्रीट्स होते हैं जहां पर लोग आते हैं और वहां पर गर्दी करते हैं, भीड़ करते हैं और शॉपिंग करते हैं।
और वहां पर शॉप मिलना आपको मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पर आप अपने आप को इनके साथ में रिप्लेस कर सकते हो गाइस, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको एसईओ। अब प्रेजेंटेशन फिर से आ जाता हूं। एसईओ करने से पहले आपके पास में होनी चाहिए वेबसाइट, क्योंकि इनकी वेबसाइट है गाइस, ये वेबसाइट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर है। मतलब अगर चौक में आना है आपको तो आपके पास दुकान होनी चाहिए। तो वैसे ही आपको एसईओ करना है या डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, और वेबसाइट होनी है तो आपको 6-7 हजार रुपए का खर्चा आएगा डोमेन और होस्टिंग का। मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ओके। डेवलपमेंट तो आप मेरे वीडियोस देख के सीख जाओगे, लेकिन डोमेन और होस्टिंग आपको परचेस करनी पड़ेगी, ओके। सो ये है गाइस वेबसाइट डिजाइन का पार्ट। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। और वेबसाइट डिजाइन के में आप जरूर ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हो, वो भी फ्री में। अगर आप blogger.com पे जाओगे, मेरे यूट्यूब वीडियोस में देखोगे, आप blogger.com टाइप करोगे तो वहां पे आप सिखाए, एक वीडियो है मेरा जो काफी पॉपुलर है वीडियो है, आपको दिखाता हूं। उस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से, अगर आप वर्डप्रेस भी सीखना है तो वर्डप्रेस को सीखने से पहले आप वो वीडियो देख लीजिए गाइस। ये वीडियो जो है आप देख सकते हैं, ये अमेजोन की तरह वेबसाइट कैसे बनाएं, इस तरह का वीडियो बनाया था मैंने, ये वीडियो। और इस वीडियो को काफी लोग देखते हैं, आज भी देखते हैं। ऑलरेडी 1.5 साल हो चुका है इसको, लेकिन काफी लोगों को पसंद है ये वीडियो। ओके, सो इस वीडियो को ढूंढ लीजिए गाइस। और इसमें कुछ आई थिंक 10,000 प्लस लोगों ने देखे हैं वीडियोस, काफी सारे कमेंट्स है इसके ऊपर में, काफी सारे लोगों ने अमेजोन की वेबसाइट बनाई है। आप भी बना सकते हो इस वेबसाइट को। अगर वर्डप्रेस पे बनाना है तो वर्डप्रेस के ऊपर में ऑलरेडी कंप्लीट सीरीज है गाइस। देखिए कैसा होता है, वर्डप्रेस पे बनाओ या ब्लॉगर पे बनाओ, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी वेबसाइट डेवलप करने के लिए। वो भी आई थिंक आप खुद होके सीख सकते हो, लेकिन वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म बेटर होता है ब्लॉगर से। तो आप कोशिश कीजिए कि आप वर्डप्रेस पे बनाओ। अब जैसे कि मैंने कहा कि गूगल का पेज जो है वो चौक है, और उसको कहते हैं एसईओ। चौक में आपको खड़ा रहना है तो आपको एसईओ करना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। अब गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, फिर से गूगल पे लेके आता हूं मैं आपको। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये एड दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये एड दिख रही है 1 2 3। अगर हम लोग कुछ भी अगर शॉपिंग भी करना चाहते हैं, जैसे वॉचेस फॉर मेन, ये अगर हम लोग कीवर्ड डालते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर ये भी एड्स हैं, इसको कहते हैं डिस्प्ले एड्स, ओके। और जो पहली एड्स देखी है उसको कहते हैं सर्च एड्स। दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग है। ये ई कॉमर्स के लिए है, आपको इस वॉच को क्लिक करोगे तो तुरंत आप इस वॉच के पेज के ऊपर जाओगे और शॉपिंग कर लोगे, अगर शॉपिंग करनी हो तो, ओके। अब गाइज यहां पर मैं जो ये पेज दिख रहे हैं, मिंत्रा, टाइटन, अमेजोन, ये पेजेस दिख रहे हैं आपको, और ये है ऑर्गेनिक रिजल्ट। इनको कहते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक मतलब बिना मिलावट के। आप बिना मिलावट के गूगल अल्गोरिदम्स को, मतलब गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके जब एसईओ करते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, तो आप यहां पर आते हो। गाइस यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है आने के लिए, इतना इजी नहीं होता कि आप जो है तुरंत यहाँ पे आ जाओ और रैंक कर जाओ, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए बहुत सी ट्रैफिक, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखना है, अपने आप को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन यह है गूगल का सर्च रिजल्ट, इसको कहते हैं एसईआरपी भी कहते हैं कुछ लोग। एसईआरपी मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ये जो रिजल्ट्स हैं इनको एसईआरपी भी कहते हैं। तो इन एसईआरपी पे आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कैसे करती है, कैसे नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कुछ, क्योंकि कैसा होता है कि बहुत सारे लोग इलीगल वे में भी काम करते हैं। जैसे गूगल के ऊपर में रैंक होना है तो इलीगल वे भी किसी और का डुप्लीकेट कंटेंट ले लिया और उसको हमारी वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया। ऐसी टेक्निक को कहते हैं ब्लैक हैट टेक्निक, और ये ब्लैक हैट टेक्निक अवॉइड करनी है। हम लोगों को जेन्युइनली आगे बढ़ना है जिंदगी में, लाइफ में, तो डेफिनेटली, इसीलिए मैं फिर से आ रहा हूँ, पैशन के ऊपर में काम करना है। आपको जो पसंद है उसके ऊपर में काम करोगे तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगी अपने वेबसाइट के ऊपर में, और वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक मिलेगी या फिर यूट्यूब के ऊपर में, तो आपकी अर्निंग शुरू होगी। गाइस देखो, बहुत सारी कंपनीज जो है अभी एट प्रेजेंट, जितनी भी कंपनीज है, वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चेक करती है, आपका लिंक्डइन चेक करती है, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक चेक करती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। बहुत सारे एमएनसीज करती है। इसलिए आपको एक ऐसा पर्सनालिटी शो करना है सोशल मीडिया के ऊपर में, एक संजीदा या एक इंटेलेक्चुअल, कि लोग समझे कि यार ये जो बताता है वो एक स्पेसिफिक चीज में बताता है, एक स्पेसिफिक चीज में एक्सपर्ट है।
सो बहुत जरूरी हो जाता है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी क्रिएट करना। अगर कोई कहता है कि मैं फेसबुक के ऊपर में नहीं हूं, तो गाइज फेसबुक के ऊपर में रहना मतलब अपने रिलेटिव्स के साथ में अटैच रहना नहीं होता। फेसबुक के ऊपर रहना और अच्छी बातें शेयर करना, हो सकता है कि कोई कंपनी आपका पेज वॉच करे, आपका रेज्यूमे देखने से पहले ही लोग जो है अभी पेज चेक करते हैं आपका। और हम लोग भी करते हैं, मेरी कंपनी भी करती है, लिंक्डइन के ऊपर में जाकर या फेसबुक के इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो। वहां से पता चलता है कि आप कितने सीरियस हो अपने लाइफ के बारे में। अगर मैं किसी को हायर करता हूं तो मैं चाहूंगा कि वो बंदा कम से कम 1 साल के लिए मेरे साथ जुड़ा रहे, क्योंकि हम लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, कंपनी जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करती है टाइम के फॉर्म में और पैसों के फॉर्म में। तो हम लोग चाहेंगे कि हमको ऐसा एम्प्लॉय मिले जो ट्रस्ट वर्दी हो। इसलिए आप सोशल मीडिया का यूज जो है सही ढंग से कीजिए। अगर सोशल मीडिया पे नहीं हो तो ब्लॉगिंग साइट का यूज जो है वो सही ढंग से कीजिए। और ये आपको दोनों देगा, आपको जॉब भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर मैं इंस्टाग्राम के लिए आपको हायर कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं पहले आपका इंस्टाग्राम का पेज, खुद का पेज चेक करूंगा। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे वेबसाइट के ऊपर में चाहिए तो आपकी वेबसाइट चेक करूंगा। अगर मैं बोलूंगा आप लिंक्डइन के लिए आ जाओ तो लिंक्डइन चेक करूंगा। अगर आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इनके ऊपर में आना चाहते हो तो डेफिनेटली आपकी ऐप ने जो एड बनाई है उसका इंपैक्ट क्या हुआ है वो चेक करूंगा। तो ये सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो अभी कोई छिपाने वाली चीज नहीं है कि मैं इसको हाइड कर दूंगा, ऐसा नहीं होता, आपको दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपना प्रोफाइल मेंटेन कीजिए गाइस, और एसईओ कीजिए अपने वेबसाइट का, ताकि आपको ट्रैफिक आए, आपके कीवर्ड जो है वो फर्स्ट पेज में रैंक हो। उसके बाद में गाइस पीपीसी एडवर्टाइजिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल के ऊपर में आप देख सकते हैं ये जो है ये एड्स है, ये डिस्प्ले एड्स है। अब इसके ऊपर में जो क्लिक आया तो उसको कहते हैं पेपर क्लिक। जैसे मैंने आपको बताया था सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक और पेपर क्लिक। तो इन एड्स को उतना पे करना है जो हम लोग देख रहे थे यहां पर, ये जो रुपीस दिख रहे हैं $92 या $1.40, ये इन कंपनीज को पे करना होगा। ये जो यूनिसेक्स, सॉरी क्या है, इचकैफ्ट या फिर जो भी टॉमी हिलफिंगर, ये जो वॉचेस है, ये कंपनी स्विस टाइम, ये कंपनीज पे करेगी इस एड के लिए, ये इतना पे करेगी। और जिन वेबसाइट के ऊपर में एड रन होती है उनको उतना पैसा मिलेगा। तो ये पे कर रहे हैं। अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो उतने पैसे उनके गूगल जो है वो ले लेगा उनसे। तो इसको कहते हैं पीपीसी, पेपर क्लिक एड्स। अब एड्स जो है पीपीसी नहीं होता, आप पीपीसी जो है फेसबुक पे भी कर सकते हो, गूगल एड्स हो, फेसबुक एड्स हो, इंस्टाग्राम एड हो, या लिंक्डइन एड हो, ट्विटर एड हो। हर कोई एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में पैसे रेवेन्यू जनरेट करता है। इनफैक्ट गूगल का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 90% रेवेन्यू वो पीपीसी के थ्रू आता है। तो गूगल यहां से पैसे कमाता है पीपीसी एडवर्टाइजिंग के थ्रू। और हम लोगों को लगता है गूगल फ्री में है, फ्री में नहीं होता गाइस। वो लोग एडवर्टाइजिंग इंजन के ऊपर में लोगों को ऐड करवा रहे हैं और वहां से पैसे जनरेट करने हैं। उनका रेवेन्यू जो है वो पीपीसी एडवर्टाइजिंग के थ्रू आता है। ओके, उसके बाद में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग जो है अभी काफी लोग इसको जानना समझना शुरू कर दिए। अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग आपको पता होगा शायद। जितने भी अमेजॉन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप खुद सेल कर सकते हो, मतलब खुद अमेजॉन के प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आपका अमेजॉन के ऊपर में एफिलिएट अकाउंट होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं अमेजॉन एफिलिएट अकाउंट। ये साइट के ऊपर में आना है आपको, अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम। यहाँ पर अगर आओगे आप लोग तो इस पेज को ओपन करके आप जाओगे यहाँ पर और साइन अप करना है। और साइन अप करने के बाद में आप जो है आ जाओगे एफिलिएट मार्केटिंग के पेज के ऊपर में। अब इधर से ये आप देखो यहाँ पे आ चुका मैं। एक मेरा ये डेमो अकाउंट है और यहाँ पर मैं अमेजॉन एफिलिएट के बहुत सारे प्रोडक्ट देख सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और भी मुझे सर्च करना है, सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे कोई फोन, एम आई फोन डाल देता हूं, मैं सर्च कर रहा हूं इसको। अब देखिए गाइस ये एम आई के फोन्स अवेलेबल है, ये अमेजोन का अकाउंट है लेकिन एफिलिएट अकाउंट है। ओके, अब मुझे ये प्रोडक्ट जो है इसका कॉस्ट है 9499। ओके, अब इसको मुझे जो है मुझे सेल करना है, मतलब मैं सेल करूंगा इसको। अमेजोन कर रहा है सेल, अमेजोन के प्लेटफॉर्म से ही सेल होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरी एक साइट है कार्डियो टू फिटनेस, ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट की ये एफिलिएट साइट है, अमेजोन एफिलिएट साइट है। अब यहाँ पर ये ब्लॉग्स है फिटनेस से रिलेटेड। ओके, अब यहाँ पर एक कुछ ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, एट बेस्ट कार्डियो फॉर वेट लॉस,
या फिर देख सकते हो बेस्ट स्मार्ट वॉचेस अंडर 5000 इन 2021। ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग को मैं ओपन करता हूं और आप देखिए यहाँ पर ये ब्लॉग लिखा हुआ है बात बोट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच। उसके बाद में यहाँ पर है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा बेस्ट स्मार्ट वॉच। ओके, अब ये वॉचेस है और इसके फीचर्स भी दिए हैं। तो मैंने एक ब्लॉग लिखा है इस वॉच के ऊपर में। ओके, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा बाय नाउ। ओके, बाय नाउ जैसे करता हूं मैं, जैसे मैं क्लिक कर देता हूं बाय नाउ, तो ये जा रहा है अमेजोन के साइट के ऊपर में और यहां से ये करंटली अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई परचेस कर लेता है तो मुझे इसका कमीशन मिलेगा 5 to 10% गाइस। और यही है अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। तो यहां पर जो है आप लिंक यहां से ले सकते हो, जो ये लिंक है आपको दिखाई दे रही है गेट लिंक, इसके ऊपर में क्लिक करोगे तो मुझे इसकी लिंक मिलेगी, जो लिंक हम लोगों को हमारे वेबसाइट के ऊपर में पोस्ट करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ओनली वाली ये जो लिंक दिख रही है यहाँ पे, ये लिंक है, मतलब सिर्फ टेक्स्ट वाली अगर आपको चाहिए। इमेज के साथ में अगर लिंक चाहिए तो ये है, आप देखिए इमेज के साथ में लिंक है तो ये है। इसको मुझे कॉपी करना है और वेबसाइट के ऊपर में पेस्ट करना है, जहां पर भी पेस्ट करूंगा गाइस, और इसको सेल करूंगा। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू बैन होने के चांसेस होते हैं। अमेजोन के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आप सोशल मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू ही प्रमोट करना है। तो यहां पर भी आपको अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। अब गाइस अगेन, वेबसाइट जो है एक तो बाहर से बनवाओ, या जैसे कि मैंने कहा अगर आपको फ्री में बनानी है तो आपको फॉलो करना होगा, मेरे वीडियोस देखने होंगे, या फिर कुछ और वीडियोस देखिए जो बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो वर्डप्रेस के ऊपर में साइट बना के देते हैं। तो अमेजोन की साइट जो है, अमेजोन प्रोडक्ट के लिए साइट ऐसे बनती है। तो ये अकाउंट आपको क्रिएट करना होता है, उसके बाद में उनको आपको प्रमोट करना होता है। अच्छा, अब मेन पॉइंट है क्या अमेजोन ही ऑफर करता है एफिलिएट मार्केटिंग? तो उसका आंसर है नो। अमेजोन के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो ऑफर करते हैं, आई थिंक अनलिमिटेड लोग हैं, बहुत सारी कंपनी होती है। जैसे एक कंपनी है जेवीजू, इस कंपनी के साथ में मैं एसोसिएटेड हूं और ये प्लेटफॉर्म है जेवीजू का। इसको मुझे लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद में मुझे मिलेंगे अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स जेवीजू के। जेवीजू ऐसी कंपनी है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने एफिलिएट लिंक्स, एफिलिएट जो जिन प्रोडक्ट को अपने एफिलिएट लिंक्स देनी होती है वो आते हैं और रजिस्टर करते हैं, और हमारे जैसे एफिलिएट मार्केटर वहां से प्रोडक्ट चूज करते हैं और फिर वहां से हम लोगों को कमीशन मिलता है गाइस। सो यहां से हम लोग अब प्रोडक्ट में जाएंगे हम लोग, तो टॉप सेलर में जाऊंगा मैं, तो मुझे दिखाई देगा यहाँ पर कि कौन से प्रोडक्ट्स है जो टॉप सेलर है, फिर उनका कमीशन कितना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स है। तो मोस्टली यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर कुछ अलग प्रोडक्ट्स भी होते हैं, यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। इनमें से मुझे चूज करना है, फिर उसकी लिंक मिलती है, उस लिंक को लेना है, हमारी वेबसाइट पर डालना है और उसके बाद में उनको प्रमोट करना है ब्लॉगिंग के फॉर्म में। जैसे मैंने दिखाया आपको कार्डियो टू फिटनेस का ब्लॉग दिखाया, जिस तरह से मैंने कंपेरिजन वाला ब्लॉग क्रिएट किया है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिए यहाँ पर कंपेरिजन किया है और उसके बाद में जब लोगों को ये कंपेरिजन पढ़ते हैं और अगर कोई यहाँ से परचेस कर लेता है तो अमेजोन या जेवीजू जैसी कंपनी मुझे XYZ अमाउंट पे करेगी कमीशन के फॉर्म में। ओके, सो ये एफिलिएट मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे डीलर्स हैं। ऐसी दुनिया में कोई कंपनी नहीं है जो एफिलिएट मार्केटिंग करती नहीं है। 90% कंपनीज जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग से रेवेन्यू जनरेट करती है, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो। आपको मैं दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ, थोड़ी मैजिकल लगेगी आपको। चलो हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने ओयो रूम्स कहा था, ओयो रूम्स एफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ पे आए हम लोग। ओके, अब ओयो रूम्स जो है, जैसे कोई ट्रैवलर है और ट्रैवल कर रहा है और साथ में अपने वेबसाइट के ऊपर में ओयो रूम्स के रूम्स जो है वो प्रमोट कर रहा है और वहां से अगर बुकिंग होती है तो उसको भी कमीशन मिलता है गाइस। ऐसी हर एक कंपनी जो है वो कमीशन ऑफर करती है। ये दिखा है हु कैन ज्वाइन, उन्हें लिखा हुआ है। ओके, कैन ओनली ट्रैवल इन्फ्लुएंसर एंड एफिलिएट ज्वाइन, ये क्वेश्चन किया है, क्या एफिलिएट मार्केटर जो एफिलिएट जो मेकर है वही ज्वाइन करते हैं? तो ऐसा नहीं है गाइस। नंबर ऑफ बुकिंग्स कितनी होनी चाहिए, उनका 5% कमीशन कितना है, 5% कमीशन टैक्सेस बिफोर 10,000। अगर आप लोग जो है 102 बुकिंग लेके आते हो, सक्सेसफुल 100 बुकिंग है आपकी, एवरेज बुकिंग का 2,000 रुपए वॉल्यूम है आपका, उसके 5% मतलब 10,000 रुपए पर मंथ आप कमा रहे हो। अगर आपकी वेबसाइट है, अगर वेबसाइट के ऊपर में ट्रैवल की वेबसाइट है, वहां पे आप अमेजोन ओयो का एफिलिएट लिंक प्रमोट कर रहे हो, तो इस तरह का इनकम होता है। तो ओयो हो, जोमेटो हो या स्विगी हो या अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, दुनिया की कोई कंपनी नहीं है, इनफैक्ट इट्स इंक्लूड
MI हैंडसेट्स हो या फिर एप्पल के फोन्स हो, हर कोई अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन करता है। आपको उन प्रोग्राम के साथ में एसोसिएट होना है। थोड़ी डिफिकल्टी आती है, जैसे अभी MI के पास जाओगे या फिर एप्पल के पास जाओगे, वो तो बोलोगे कि हम लोग आपके लैपटॉप्स, आपके मैक जो है प्रमोट करना चाहते हैं, तो नहीं देंगे। तो ऐसी कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, जेवी जूस जैसे कंपनी के साथ में लोग, कंपनीज, और वहां से हम लोग को प्रोडक्ट लेना है। तो हम लोगों को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है गाइस यहाँ से, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी। और आपके जॉब के प्रोस्पेक्टिव्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपना बिजनेस रन करती है और करती है। इसलिए आपको समझना है तो आपको खुद का एफिलिएट मार्केटिंग पहले शुरू करना है। दिस इज द टाइम, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो। जैसे कि मुझे कहा गया है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो फर्स्ट ईयर हो, राइट टाइम ही है कि आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की साइट शुरू करो, आपकी ब्लॉगिंग साइट शुरू करो, ताकि आप लोग इसमें से रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। ओके, उसके बाद में है गाइस स्टार्टअप। ये तो हर किसी का सपना होता है, बी योर ओन बॉस। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, जब मैं एमबीए किया करता था, मैंने बैंगलोर से एमबीए किया है बहुत सालों पहले। तो जब मैं एमबीए किया करता था, बहुत 15 साल हो गए मुझे एमबीए करके, तो जब मैं एमबीए किया करता था तो लोग आते थे वहां पर स्टार्टअप्स ओनर और सोचा करते थे कि यार खुद का स्टार्टअप हो। ओके, हम लोग सोचा करते थे। और मेरा इंस्टीट्यूट, जो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन बिजनेस एकेडमी, IBA, तो वो हम लोग काफी पुश करता था कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। लेकिन मैं बताऊं आपको कि 100 स्टूडेंट में से, 50 स्टूडेंट में से 90% लोग जो है वो 90% लोग जो है वो सोचते हैं कि हम लोग को स्टार्टअप करना है, और 10% लोग सोचते हैं कि जॉब करना है, एमबीए जब करते हो तब। लेकिन बाद में कैसा होता है, धीरे 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 हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। ओके, और वो 90% की जगह हो जाता है, मतलब 90% स्टार्टअप जो शुरू करना चाहते हैं वो हो जाते हैं 90% जॉब स्पेसिफिक। आप जॉब लेना शुरू करते हो। ओके, और फिर बच 10% लोग, मतलब पहले 90% लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं एमबीए में एडमिशन से पहले। लेकिन एमबीए करते करते उनके उनके जो उनका इमेज होता है, उनका जो इमेजिनेशन है, उनकी आइडियाज हो, उनको जंग लग जाता है गाइस। आई थिंक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और ये मैं बहुत सारे, क्योंकि मैं आई बीन टू गेस्ट लेक्चर टू सिम्बोसिस, काफी सारे कॉलेज में, DYPS, अगर आपको पता होगा पुणे के बारे में, वहां पे काफी सारी जगह मैं गया हूँ। तो वहां पर मैं जब भी गया हूँ तो मुझे यही पता चला है कि आज लोग जो है वो, काफी सारे लोग, स्टूडेंट जो है स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होना शुरू होती है। तो 90% वाला जो नंबर होता है जो स्टार्टअप शुरू करने का, वो आता है 10% के ऊपर में, और बाद में एक्चुअल स्टार्टअप हार्डली 2-3 लोग करते हैं। तो आपकी बैच में ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है, दिस इज द राइट टाइम। जब मुझे कल पता चला, परसों जब आपके सर के साथ में, देशमुख सर के साथ में जब डिस्कशन शुरू हुआ मेरा कि आपको मुझे लेक्चर देना है, तो मुझे यही लग रहा था कि आपको मैं बताऊं कि कितना जरूरी होता है अपनी आइडियाज को कन्वर्ट करना। और आइडियाज वही हो सकती है गाइस जिसमें आप पैशनेट हो। किसी और की आइडिया भी कॉपी नहीं करना है, कोई और पापा की आइडिया, मम्मी की आइडिया, किसी दोस्त की आइडिया कॉपी नहीं करना है, आपकी खुद की आइडिया। अगर आपके पास में आइडिया नहीं है तो बेटर है जॉब करो। ओके, और जॉब में जाने के बाद में भी आपको, क्योंकि मुझे खुद लगे 10 साल के बाद मैं कंपनी शुरू कर पाया हूँ। ऑल्दो एमबीए के वक्त सोचा करता था कि मेरी कंपनी होनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाया। उसके बाद में 10 साल लग गए मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। अगर आपको भी अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो, लेकिन अभी उस जमाने में डिजिटल मार्केटिंग नहीं था गाइस, अभी है। अभी यूट्यूब के ऊपर में या फिर हर किसी चीज के ऊपर में आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, सिंपलेस्ट तरीके में वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर करियर ऑन ब्लॉगिंग। अगर ब्लॉगिंग में करते हो तो मैं आपको बताता हूं, आपको नेक्स्ट ईयर की फीस आप खुद पे कर पाओगे, अपनी कॉलेज की फीस भी खुद पे कर पाओगे, इतने पैसे जनरेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, स्टडीज तो है, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन पैशन के लिए हम लोग समय निकाल लेते हैं। जैसे यूट्यूब के लिए हम लोग समय निकाल लेते हैं, मतलब कोई मूवी देखनी हो, जैसे अभी कोई मूवी आई है, सपोज अभी कोई भी नई सीरीज आ जाती है, तो सीरीज के लिए हम लोग समय निकाल लेते हैं, 4-5 घंटे 6 घंटे हम लोग कंटिन्यू देख लेते हैं। तो गाइस, क्यों ना आप अपना खुद का कंटेंट जनरेट करो उस टाइम में, और वो खुद का कंटेंट जनरेट करोगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है उससे पैसे कमाना शुरू करोगे, और तब आपकी आएगी नेक्स्ट ईयर की फीस। सोचिए गाइस कि नेक्स्ट ईयर की फीस जो है, कॉलेज की फीस आप खुद पे कर रहे हो। आपके पेरेंट्स कितने खुश रहेंगे, मतलब आई थिंक उनसे ज्यादा खुश तो कोई नहीं रहेगा अगर उनको पता चलेगा मेरा बेटा अभी से कमाना शुरू कर रहा है। ओके, वो भी थोड़े से समय में, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपने पैशन के ऊपर में। जितना टाइम आप मूवी देखने में इन्वेस्ट करते हो, उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना है आपको अपने पैशन के ऊपर में, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब मेकिंग हो, पिंटरेस्ट हो, लिंक्डइन हो, कोई भी अकाउंट, या एसईओ हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और बी योर ओन बॉस। ये गाइस, तो इस तरीके से आप, आई थिंक मुझे लगता है कि डेफिनेटली
आने वाले समय में बहुत अच्छा करोगे। अभी आगे की स्लाइड्स भी है कुछ, लेकिन मैं उसको थोड़ा फास्ट कवर करता हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी भी डाउन हो रही है। अभी 1.5 घंटा हो चुका है हम लोगों को शुरू करके। मैं आपको बताऊंगा सैलरी वाइज, आप देख लीजिए एक बार, आपको इसमें इंटरेस्ट होगा जिन लोगों को जॉब करना है। ये बहुत रीजनेबल नंबर है गाइस, मैंने खुद के एक्सपीरियंस से डाले हैं। ये कोई नंबर्स ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन से निकाले हुए हैं। ओके, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर शुरू करते हो तो 3 to 4 मंथ्स में सैलरी वाइज एज ए इंटर्न, पहले 6 महीने तक इंटर्न रहोगे किसी भी कंपनी में। अभी भी इंटर्नशिप शुरू कर सकते हो, अगर समर हॉलीडेज में आपको टाइम मिलता है, समर प्रोजेक्ट के लिए, आपका समर प्रोजेक्ट होगा उसमें भी इंटर्नशिप कर सकते हो। 5 to 10,000 का इंटर्नशिप मिलेगा आपको ना। अमरावती से बाहर निकल के भी आप इंटर्नशिप सोच सकते हो गाइस। ये सीखने का टाइम है, यहाँ पे सोचने वाला टाइम नहीं है कि अमरावती में रहूं, घर में रहूं, धूप रहेगी, अप्रैल मई मंथ का टाइम रहेगा, ये सोचना बंद कर दो। अगर बाहर निकलना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद में फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी हो जाएगी, इंटर्नशिप के बाद में सैलरी हो जाएगी 15,000 to 20,000। सेकेंड ईयर में 30 to 40,000। गाइज ये सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंच जाओगे आप। थर्ड ईयर में आपको 45,000 की सैलरी होगी। फोर्थ ईयर में 50,000 60,000। फिफ्थ ईयर के बाद में 65 80,000। गाइज कोई भी फील्ड इतना जंप आपको नहीं देगा 5 साल के अंदर में कि आप 80,000 रुपए तक सैलरी कमाओ। ये उनके लिए जो जॉब में प्रीफर करते हैं। जो लास्ट स्लाइड थी उसके ऊपर मैं बताया कि मैं स्टार्टअप ओनर्स के लिए, ओके, लेकिन इस स्लाइड में मैं बता रहा हूं जिनको जॉब्स करने हैं। तो इस तरह की सैलरी मार्केट में अवेलेबल है और जॉब भी अवेलेबल है। तो ट्राई डिजिटल मार्केटिंग टुडे गाइस। ये टाइम है सही जहां पे आप डिजिटल मार्केटिंग कर पाओ और सीख पाओ। मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ फास्ट, ओके, ताकि हम लोग जल्दी खत्म करें इसको। आने वाले समय में क्या होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स आने वाले समय में कैसे, ये 4-5 स्लाइड से इसको खत्म करके हम लोग हमारा सेशन एंड करेंगे यहाँ पर। तो पहला है वर्चुअल रियलिटी। गाइस वीआर कहते हैं इसको, वीआर शॉर्ट फॉर्म में। ये वर्चुअल रियलिटी आप इमेज में भी देख सकते हो कि किस तरह से है। ये आपने एक जो है गॉगल लगाया हुआ है और उसके बाद में आप देख पा रहे हो। तो वर्चुअली आप चीजों को देखना शुरू करोगे। तो आप जो है आने वाले समय में वेबसाइट को सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं देखोगे, प्रोडक्ट को महसूस सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं करोगे, आपके लैपटॉप पे नहीं करोगे, आप वर्चुअली भी कर सकते हो। और जब वर्चुअली आएगा तो डेफिनेटली उस वेबसाइट को वर्चुअल प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और जब तब आप जो है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज वर्चुअली पिच करोगे और ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होने वाला है। सो आने वाले समय का फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग का किस तरह से, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में है ऑगमेंटेड रियलिटी, इसको एआर कहते हैं। तो अगर आपको रियल एस्टेट में हो, आप सब जॉब कर रहे हो, रियल एस्टेट के फ्लैट्स आपको दिखाने हैं, जैसे कोविड के बाद में तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, तो इस तरह से बहुत सारी कंपनी ने स्पेशली मुंबई में कुछ बिल्डर्स है, लोधा करके काफी बड़ा बिल्डर है मुंबई में, उन लोगों ने एआर का यूज करके, ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके घर बैठे आपको पूरा फ्लैट दिखाया है। आप अपने यहाँ पर मोबाइल के ऊपर में जाके चेंज कर सकते हो, वहां के डोर्स ओपन कर सकते हो और पूरा फ्लैट चेक कर सकते हो। और ये भी पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का गाइस, ये आने वाले समय का फ्यूचर है। उसके बाद में है गाइस स्मार्ट स्पीकर्स एंड ऑडियो। ये तो ऑलरेडी आ चुका है, अलेक्सा वगैरह पता है आप लोगों को। आई थिंक मुझे लगता है गूगल के ऊपर में भी, गूगल के ऊपर में भी आप स्पीकर्स आ चुके हैं, ऑडियो स्पीकर्स, जिसके थ्रू आप पूछ सकते हो कि जो आपको, आई थिंक सीरी, अगर जिनके मैक है तो मैक के अगर साथ में जिनके लैपटॉप है उनके साथ में अगर डिस्कस करते हो तो ऑनलाइन आप पूछ सकते हो उनको, और ये धीरे धीरे कैप्चर करेगा वेबसाइट के ऊपर में भी, और वेबसाइट के ऊपर में भी इसका फ्यूचर आएगा। तो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोट करने के लिए काम में आएगा। तो ये भी फ्यूचर है गाइस। उसके बाद में लाइव वीडियो। सडनली गाइस लाइव वीडियो बहुत एंजॉयबल शुरू हो गए। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, वो लाइफ के बारे में बताते हैं। जैसे सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, इस बारे में वीडियोस क्रिएट करते हैं, इस बारे में ब्लॉगिंग करते हैं। और ये लाइव वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं सडनली। ओके, अब लाइफ जो है वो हर किसी को दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट होता है, तो उसको कैप्चर करके लोगों ने लाइव वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। और उसका भी बहुत ज्यादा मार्केट है, क्योंकि लाइव वीडियो सब जैसे प्रोडक्ट सर्विसेज है, कोई टीवी बेच दिया आपने, फ्रिज रेफ्रिजरेटर खरीदा है, तो लाइव एक्सपीरियंस उस रेफ्रिजरेटर का वो अगर कोई बता दे तो ज्यादा मजा आएगा। मतलब रिव्यूज देखो, आप जाओगे रिव्यूज चेक करो, हैंडसेट खरीदना है सपोज तो रिव्यूज देखते हो आप, लेकिन अगर लाइव वीडियो देखोगे आप, लाइव वीडियो के थ्रू अगर कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है हैंडसेट से, तो वो ज्यादा काम में आएगा। तो आने वाले समय में इसका फ्यूचर है गाइस। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ये तो आपने सुना होगा गाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई कहते हैं इसको, या फिर मशीन लर्निंग, एमआई। तो जो एमएल, सॉरी, तो एआई एमएल जो है ये बहुत जल्द, क्योंकि गूगल एड्स के ऊपर में, फेसबुक एड्स के ऊपर में, इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर में बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स लगे हैं, क्योंकि ऑटोमेटेड करना है। अभी मैनुअल इंटरवेंशन कम होते जा रहा है गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग में, गूगल के ऊपर में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा यूज, मतलब रोबोटिक्स, ये काफी यूज हो रहा है। तो ये भी टेक्नोलॉजी है आने वाले समय में ऐड होने वाले डिजिटल मार्केटिंग में, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। सो बी रेडी फॉर दैट। अगर कुछ भी नॉलेज आपको नहीं भी है तो ये टाइम है आपको नॉलेज कैप्चर करने का। उसके बाद में चैटबॉट, डेफिनेटली चैटबॉट, मतलब आप वेबसाइट के ऊपर में इंटरेक्ट कर रहे हो, आपका कस्टमर जो है रात को 2 बजे भी पूछ सकता है वेबसाइट के ऊपर में जाकर, अगर कोई इश्यू आया तो, लेकिन उसके बाद डिस्कस करने के लिए कोई रोबोट चाहिए, तो उसी को कहते हैं चैटबॉट। तो इस तरह के टूल्स ऑलरेडी बने हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी यूज कर रही है, आने वाले समय में सब लोग यूज करना शुरू करेंगे। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। उसके बाद में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स को प्रमोट करते हो। जितने भी मूवी स्टार्स है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही है, जितने भी यूट्यूबर्स है, जितने जिनको इंस्टाग्राम के ऊपर में थोड़ा बेस है, वो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बन कर लेते हैं और वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो ये सब चीजें गाइज जो है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो गाइज मैंने आपको बताया, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ यहाँ पर इस लेक्चर को। फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ और कुछ चीजें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरे बारे में समझ में आए, मैं कौन हूँ और मेरे ईमेल आईडीज क्या है आप देख सकते हो। डिजिटल गुरु संजोग मेरा नाम है, मेरी वेबसाइट है zapcode.com। इस वेबसाइट को हम लोग बंद कर चुके हैं, मैं इसको एक मिनट गाइस, ज़ैपकोड एकेडमी करके एक साइट है हमारी, zapcodeacademy.com, वहां पे भी जा सकते हो आप, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुन सकते हो, इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। साथ में आप जो है इस वेबसाइट कंपनी की वेबसाइट पे भी जा सकते हो। मेरा नंबर भी दे देता हूँ आपको मैं, ताकि आप लोग, जो मेरा ऑफिशियल नंबर है उसको ऊपर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प लगती है डिजिटल मार्केटिंग में, ये मेरा नंबर है 9511682850, ये मेरा पर्सनल नंबर है गाइस। इसको आप जो है कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हो, मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरा ऑफिस का नंबर भी है वो भी मैं दे देता हूँ। मैं उठाता नहीं हूँ ये नंबर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 74002 93607 इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस आप लोग। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं मुझे पूछ सकते हो। हाँ, कंक्लूड कर देते हैं हम लोग। कंक्लूड करने से पहले मैं बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। जिनको भी डिजिटल मार्केटिंग में सीखना है सपोज, ओके, और समझना है, अगर वो लोग चाहते हो अपनी वेबसाइट डेवलप करना है, तो आप मेरे वीडियो तो देखोगे, लेकिन डायरेक्टली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन साथ में अगर होस्टिंग का, अगर हम लोग एक लिंक शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में, और आज जो डिस्कशन हुआ उसके ऊपर में एक क्वेश्चन पेपर होगा, मैं सर के साथ लिंक शेयर करूंगा, उस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है गाइस, चीटिंग मत करना। और जिनको भी हम लोग टॉप 2, मतलब 2 लोगों को आप में से चूज करेंगे, और जिनको वेबसाइट के लिए हम लोग होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। जो मैं कह रहा हूं कि 5 to 7,000 रुपीज का जो आपका खर्चा होता है, वो खर्चा आपका सेव हो जाएगा। आपको डोमेन परचेस करना है, जो आपको 150 रुपए मिल रहा है, 150 रुपीज में 200 रुपए में डोमेन मिल जाएगा। लेकिन बाकी लोगों को हम लोग होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। 2 लोगों को आप में से जो टॉपर्स होंगे एग्जाम में, उनको हम लोग जो है 2 होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे हमारे सर्वर पे 1 साल के लिए, ताकि आप लोग जो भी एक्सपेंसेस भूल जाओ और अपनी वेबसाइट पे काम करो। ओनली कंडीशन इज दैट राइट कंटेंट एज मच एज यू कैन, ओके, क्रिएट कंटेंट एज मच एज यू कैन। गाइस, एमबीए का बहुत क्लोज कनेक्शन है डिजिटल मार्केटिंग के साथ में। और अगर आप एमबीए कर रहे हो और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको समझना है कि आप खुद कंटेंट क्रिएटर हो। आपको कंटेंट क्रिएट करते रहना है। जैसे देशमुख सर ने कहा था मुझे कि इस वीडियो का इसका रिकॉर्डिंग जो है भेज आपके साथ शेयर करें, तो ये कंटेंट है गाइस, ये कंटेंट क्रिएट हुआ है पिछले 2 घंटे का, और ये कंटेंट बहुत लोगों के काम में आ सकता है, आपके भी काम में आएगा और बाकी लोगों के काम में आएगा। इसलिए कंटेंट की वैल्यू है, और ऐसे कंटेंट जनरेट करते रहना। चाहे आपका डिस्कशन क्यों ना हो, आप डिस्कस करते हो तो वो भी एक कंटेंट है, तो उसको भी रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए, डिस्कशंस को, या ऑडियो में रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए और उसको पॉडकास्ट में डालिए, और पॉडकास्टिंग में आप रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कीजिए। कोई भी टॉपिक हो सकता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए,
यार मैं एमबीए कर लूंगा, यार मैं एमबीए को कैसे पास करूंगा, यार मैं जो है मेरा मैं ट्रैवल करूं, यार नागपुर से मुंबई का ट्रैवल या अमरावती से नागपुर का ट्रैवल कैसे करना चाहिए, कितना पेट्रोल खर्चा होना चाहिए, कोई भी टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करके आप उसका रिकॉर्डिंग या उसके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो और यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी आउट ऑफ इट। और बाकी हेल्प तो हम लोग करेंगे गाइज। तो इस तरह से मैं इस सेशन को एंड करता हूँ गाइज। और आप लोग जो है अभी मुझे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, सो इट्स अ क्वेश्चन टाइम, सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम ऑल अवेलेबल। यस गाइज, सो बताइए कोई क्वेश्चन है आपको? एक तो मैं समझूंगा कि आपको सब कुछ आ गया है डिजिटल मार्केटिंग, आप एक्सपर्ट बन चुके हो, या फिर मुझे लगेगा कि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। सर अगर हमें किसी को टारगेट करना है, कोई हमारा प्रोडक्ट है या कुछ है उसको टारगेट करना है, जैसे आपने बताया था वो एमआई का कि 18 से 25 साल वालों के लिए टारगेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? मतलब ऑडियंस जो है उन ओके तक रीच ओके कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा ऐड किस। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। गाइस मुझे प्लीज स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ओके आप देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, मैं लाइव दिखाता हूँ आपको टारगेटिंग कैसे करते हैं लाइव। मैं आपको लिख के चल रहा हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर में, जहां पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको कि टारगेटिंग कैसे करते हैं। ये फेसबुक एड्स अकाउंट है। अगेन फेसबुक एड कैसे रन करनी है वो आप जो है कर सकते हो रन मेरे वीडियोस देखकर, लेकिन मैं भी दिखाता हूँ टारगेटिंग कैसे होती है, माइक्रो लेवल की टारगेटिंग कैसे होती है। तो एक एड जो है हम लोगों ने रन की है, डिजिटल मार्केटिंग नागपुर में चल रही है ये एड। तो ये एड जो है वो ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग सेंटर के लिए हमारे, तो उसके इसमें आपके दिखाता हूं मैं आपको टारगेटिंग माइक्रो लेवल पे टारगेटिंग कैसे होती है। तो आप देखिए गाइस यहाँ पर पहले तो लोकेशन लिया है मैंने, नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी पार्क, इस तरह से मैंने कुछ एरिया चूज किया है जो मुझे लगता है नागपुर में इन एरिया में, इन एरियाज में एड दिखानी चाहिए। उसके बाद में मैंने एज ग्रुप यहाँ पे डिसाइड किया है, ओके अब 18 टू 35 लिया है मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए इस एज ग्रुप में बहुत लोग होते हैं, तो मुझे इन्हीं को ऐड दिखानी है। तो मैंने 18 टू 35 लिया, जेंडर्स ऑल ले लिया मैंने। उसके बाद में उनके इंटरेस्ट दिखेगा, ये बहुत जरूरी है। जो यूनिवर्सिटी में है, जो रिक्रूटमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो जॉब इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका करियर कॉलेज करियर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है, या स्मार्ट टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन टेक स्टूडेंट टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड जॉब हंटिंग, ये सब जो है इनके इंटरेस्ट को, ये इंटरेस्ट मतलब ये एज ग्रुप जो है 18 टू 35, उस एज ग्रुप के लोगों को जिनमें इसमें इंटरेस्ट हो उनको ही ऐड दिखे, ऐसा मैंने किया है। उसके बाद में उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ये लोग मैं इनको ऐड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े बिजनेस ओनर्स होंगे उनको खुद डिजिटल मार्केटर जो है हायर कर लेंगे, लेकिन स्मॉल बिजनेस ओनर क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, हाई स्कूल कॉलेज सम कॉलेज मास्टर डिग्री प्रोफेशनल डिग्री कोई भी चलेगा। उसके बाद में लाइफ इवेंट न्यू जॉब, तो इस तरह से मैंने इनकी माइक्रो टारगेटिंग की है। तो ये फेसबुक में पॉसिबल है कि इन्हीं को ऐड दिखाऊं, लेकिन अगर होर्डिंग लगाते हैं हम लोग, ये फेसबुक एड्स ही नहीं, अगर आप गूगल एड्स में भी जाओगे, गूगल एड्स में भी जाओगे आप लोग, मैं वो भी अकाउंट ओपन करके दिखाता हूं आप लोगों को। गूगल एड्स में, गूगल एड्स में जाओगे अगर आप लोग, तो यहां पर भी आप माइक्रो लेवल की टारगेटिंग कर सकते हो। गाइज इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा आपको कि जिस तरह से मैं फटाफट गूगल एड्स पे जा रहा हूँ, फेसबुक पे ऐड जा रहा हूँ, जैसे आप मैंने कहा था किसी मैकेनिक पे पास जाते हो आप, तो वो बिना देखे टूल्स को उठा लेता है, 10-11 का टूल, 10-12 का टूल, आंखें बंद करके भी उठा सकता है और नट टाइट कर देता है। किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो बिना देखे वो आपको टैबलेट, देखते ही आपको टैबलेट दे सकता है। तो ये जो है वो इसलिए आता है क्योंकि वो उनका वो एक्सपीरियंस है गाइस।
उस एक्सपीरियंस में आने के बाद में उनको वो एक्सपर्टीज आई हुई है। तो ये सेम चीज मैंने बहुत बार ऐड रन की है, तो इसलिए ये सब चीजें मैं कर पा रहा हूँ आपके सामने। और इन सभी को लिए मतलब अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे गूगल एड्स एक्सपर्ट, गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव, फेसबुक एड एग्जीक्यूटिव, ये सब जो है ये प्रोफाइल होते हैं। और इस प्रोफाइल में जाने के बाद में आप चूज करते हो जॉब। अब यहाँ पे देखिए गाइस, ये लोकेशन है। अगर मुझे लोकेशन चूज करना है, मैं एडवांस लोकेशन में जा रहा हूं यहाँ पर, और मुझे टारगेटिंग करना है अमरावती। ये अमरावती महाराष्ट्र आ गया। ओके, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। पॉपुलेशन है यहाँ पर 6,28,000, मतलब गूगल के ऊपर में जितने लोग अवेलेबल है उतने पॉपुलेशन को मैं कैप्चर कर रहा हूँ। अब ये अमरावती आ गया, मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। मैं रेडियस फॉर्म में जाकर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं चाहता हूँ कि अमरावती से सेंटर पॉइंट 20 किलोमीटर के रेडियस से मैं करूँ। 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ये अमरावती यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। इसको रिमूव कर देता हूँ, हैदराबाद को मैं। सो किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं हम लोग। और अमरावती महाराष्ट्र को चूज कर लिया मैंने किलोमीटर के हिसाब से। अब देखिए, अभी आप, पहले मैंने अमरावती सिटी को कैप्चर किया था, लेकिन अभी मैंने किलोमीटर के हिसाब से 20 किलोमीटर की रेंज का एरिया मैंने ले लिया है। अब 20 किलोमीटर शायद अमरावती के आजू बाजू जो भी जितने भी लोग छोटे मोटे शहर होंगे वो सब आ चुके हैं। आजू बाजू के जो छोटे गांव होंगे वो भी आ चुके हैं। तो इस तरह से माइक्रो लेवल और भी माइक्रो लेवल की टारगेटिंग कर सकता हूँ मैं। सपोज मैं इसको रेडियस को रिमूव कर देता हूँ मैं, ये 20 किलोमीटर का एरिया रिमूव कर दिया। अब मैं इसको क्लिक करते हैं और इसको पिन मोड में लेके जाता हूँ। ओके, अभी मुझे यहाँ पर दिखाई देगा, लोकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया जो है मुझे एक्सक्लूड करना है, रिमूव करना है। रिमूव कर दिया मैंने, तो ये रिमूव हो चुका है। मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया मैं यहाँ पर रिमूव कर सकता हूँ। टारगेट करना है तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा मैं यहाँ पर। जैसे सपोज यहाँ पे और कोई अमरावती का एरिया मुझे ज्यादा पता नहीं, गाड़गे नगर, गाड़गे नगर, अमरावती गाड़गे नगर। गाड़गे नगर हो गया, गाड़गे नगर करना है मुझे, सॉरी, गाड़गे ये जो है गाड़गे नगर को चूज नहीं कर रहा है गाइस वो, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है वो अमरावती को ही दिखा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पिन कोड वाइज कुछ चीजें दिखा रहा है वो। तो ये नियर बाय का पिन कोड मैं अगर ले लेता हूँ सपोज यहाँ पर, अब मुझे ये पिन कोड एरिया दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर इनको चूज कर लेता हूँ ऐसे और इनको टारगेट करता हूँ, तो अब माइक्रो लेवल की टारगेटिंग नागपुर के पास में आ गया, गाड़गे नगर शायद ये हो सकता है। लेकिन इस तरह से माइक्रो लेवल की टारगेटिंग हो जाती है गाइस। और अगर मैं इसको अभी इसको बंद कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग कैसे होती है। ये कैंसिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, अब है ऑडियंस सेगमेंट में अगर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मुझे ऑडियंस देखने को मिलेंगे। जो मैंने ऑडियंस ऑलरेडी क्रिएटेड करके रखे हैं वो ऑडियंस देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको यहाँ पर नया ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हो। तो एडवांस डिग्री, बैचलर डिग्री, लार्ज एम्प्लॉयर, इस तरह के ऑडियंस यहाँ पर हैं। यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन अभी अपलोड हो रहा है यहाँ पर। वो दिखने के बाद में भी आप देखिए यहाँ पर आ गया। ब्राउज अगर करूंगा मैं, और अगर मैं डेमोग्राफिक्स में चलता हूँ यहाँ पर गाइस, बहुत आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह से दे रहा हूँ। अभी देखिए आप, यहाँ पर मैं पेरेंट्स में आ चुका। पेरेंट्स के ऊपर मैं क्लिक किया। अब मुझे किसको टारगेट करना है? पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, जिनके बच्चे हैं 0 to 1 years, या उनको करना है 1 to 2 years, या 3 to 4 years, या 5 to 11 years, या 12 to 17 years। इस लेवल की माइक्रो टारगेटिंग। मैरिटल स्टेटस, मैरिड को करना है या सिंगल को करना है? मैरिड है तो मैरिड को दिखेगी ऐड, सिंगल है तो सिंगल, या इन रिलेशनशिप, जो मैरिड भी नहीं है और सिंगल भी नहीं है, इन रिलेशनशिप में उनको भी दिखा सकते हैं ऐड। उसके बाद में एजुकेशन के लेवल देख सकते हो आप। करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मल्टीपल है, कैसे? बैचलर डिग्री, एडवांस डिग्री, या होम ओनरशिप,
जो होम ओनर्स है उनको दिखाना है या फिर जो रेंट के ऊपर में रहते हैं ऐसे बच्चों को दिखाना है एड, ऐसे सिलेक्शन होता है और ये है माइक्रो लेवल की टारगेटिंग। सो आई होप मैंने आंसर किया आपको किस तरह टारगेट करती है। राइट, आई होप आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन गाइस, पूछो क्वेश्चंस, फिर से पता नहीं कब मिलूंगा आपको मैं। सर अगर जैसे ये डोमेन आपने बताया था लिए हमने कोई परचेज किए डोमेन, तो उसका हर जैसे वहां लिखा था कुछ पर 2 years वगैरह कुछ अमाउंट था, तो वो हमको बार बार रिन्यू करते रहना पड़ता है? राइट ऐसा राइट, फॉर लाइक डोमेन लॉन्ग? 1 साल के लिए लेना होता है, 1 ईयर के लिए, और हर साल उसको रिन्यू करते रहना। तो डोमेन के एक्सपेंसेस आपके 500-600 रुपए पर ईयर होगा, पर ईयर 500-600 रुपए, तो वो तो लगेगा। तो एक साथ आप 2 साल के लिए भी ले सकते हो, 10 साल के लिए भी ले सकते हो, तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ेगा, वो थोड़ा खर्चा कम करेंगे वो लोग, निगोशिएट करते हैं आपके साथ में। लेकिन अगर आपको इनिशियली 1 साल के लिए लेना है तो आप 1 साल के लिए भी ले सकते हो, तो 500 रुपए ज्यादा खर्चा नहीं होता है डोमेन के ऊपर। एनी क्वेश्चन गाइस? हेलो सर, दिस इज यशपाल हियर। या यशपाल, टेल मी। सर मैं पूछना चाह रहा था, ये जो ब्लॉगिंग है और यूट्यूब है एंड द एडसेंस है, उसको सर दिन का अगर डेली रूटीन्स में से आपको कितना टाइम देना होता है? लाइक आपको अगर न्यू पोस्ट करनी है और एनीथिंग लाइक वीडियो, आप तो एडिट उसका अलग टाइम आप काउंट करोगे, लेकिन जो पोस्टिंग है, और दिन में एक बार कितना टाइम हम दे सकते हैं कि चेक करें डेली रूटीन्स एंड अपडेट्स? वो जो चेक करके हम एक टाइम निकालते हैं, उसको कितना टाइम लगता है सर? मतलब पिन रेस ओके, एंड ऑल। मैं आंसर देता हूँ आपको। डेफिनेटली ब्लॉगिंग करने के लिए तो टाइम लगेगा आपको। ब्लॉगिंग करोगे तो उसमें आपको सोचना होगा कि क्या लिखना है। वीडियो बनाने के लिए भी टाइम लगता है, रिकॉर्ड करोगे उसके बाद में एडिट करोगे, तो पकड़ के चलिए कि 3 से 4 घंटा आप अगर बैठोगे तो उसके लिए हफ्ते में एक बार, ओके, हफ्ते में एक बार हाफ डे आपको लगेगा वीडियो एडिटिंग के लिए और वीडियो बनाने के लिए या फिर ब्लॉगिंग के लिए। लेकिन डेली बेसिस के ऊपर में अगर रिव्यू करना है आपको, तो मैं पता है कब रिव्यू करता हूँ, मतलब मैं बोल सकता हूँ आपको, आप क्योंकि मेरे सामने सब अभी स्टूडेंट्स हो, मैं आपका बच्चे हो, मैं जब वॉशरूम में रहता हूँ तब अपने ब्लॉग चेक करता हूँ। ओके ओके ओके, तो मुझे उतना ही yes, टाइम yes, लगता है जितने बार मैं वॉशरूम में, जब भी मैं जाता हूँ तो वो टाइम स्पेंड करता हूँ मैं अपने ब्लॉगिंग साइट के ऊपर में, क्या आ रहा है, कैसे व्यूज आ रहे हैं, कौन से लोग आ रहे हैं। इसके बावजूद अगर कभी लगता है तो मैं टाइम जरूर स्पेंड करता हूँ। इसका मतलब यह है कि हाफ एन आवर टू 1 आवर इतना टाइम सफिशिएंट है डेली बेसिस के ऊपर में। अगर आपको 4 घंटा वीकली नहीं देना है तो आप डेली बेसिस के हाफ एन आवर 1 आवर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, एंड ट्रैफिक फॉरवर्डिंग वर्क करता है क्या सर? मतलब वेबसाइट से इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे, लाइक आप डाइवर्ट करते होगे, मतलब डाइवर्जन आप क्रिएट कर राइट, हर जगह प्रमोट करना है। जैसे मैं आपके सामने भी कई बार बोल चुका हूँ यूट्यूब चैनल के बारे में, हम लोग जो है मार्केटिंग के बंदे हैं, मतलब हम लोग एमबीए कर रहे हैं गाइस, ओके जी। एमबीए को ये कहीं ना कहीं दिमाग में डालना है पहले, सबसे पहले, चाहे वो फाइनेंस में हो, एचआर में हो, या फिर मार्केटिंग में हो, या किसी भी फील्ड में एमबीए कर रहे हो, पहला दिमाग में डालना है कि आई एम अ सेल्समैन। ओके, मैं सेल्समैन हूं, ये कहीं ना कहीं सोचना है गाइस। बहुत लोग इस डेफिनेशन से भागते हैं, ओके, हम लोग को नहीं भागना, एमबीएस को तो भागना ही नहीं है, सोचना है कि यार मैं सेल्समैन हूं, हर चीज को बेचूंगा, हर चीज को बेचूंगा, मुझे बेचना आता है। और इसीलिए तभी आप ब्लॉगिंग या फिर जो भी आप करना चाहते हो तो उसमें टाइम स्पेंड करना पाओगे। इस शर्म को निकाल दो गाइस कि मैं यार मैं सेल्समैन नहीं बनना चाहता। अरे एमबीए कर रहे तो सेल्स, अरे बच्चा भी सेल्समैन होता है यार। अगर वो माँ के कंधे के ऊपर में है तो रोना शुरू कर देता है चॉकलेट के लिए, और जैसे चॉकलेट मिल जाता है बच्चा चुप हो जाता है। वो भी मार्केटिंग है, वो बच्चा भी मार्केटिंग कर रहा है। सो हम लोगों की इस बात की शर्म है। सो डोंट वरी, आई थिंक आप लोग जो है अगर ब्लॉगर बनना है या फिर जो भी फील्ड चूज करना है, सेल्समैन तो बनना ही है, मतलब अंदर पता होना चाहिए मैं सेल्समैन हूं। तो जहां पर भी मौका मिलता है वहां प्रमोट करो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, कहीं पर भी वहां से ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर में आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसकी कुछ टेक्निक्स होती है, उसको कहते हैं गूगल एल्गोरिदम्स। गूगल एल्गोरिदम से एल्गोरिदम को समझना है हमको। बहुत सारे एल्गोरिदम गूगल ने चेंज करके रखे हैं, मतलब कुछ हेल्पिंग एल्गोरिदम्स है, कुछ पेनाल्टी मारने वाले, मतलब हम लोगों ने अगर गलत काम किया तो हम लोग को सजा देने वाले भी एल्गोरिदम्स है। तो उन एल्गोरिदम को समझना है। ये कैसा है गाइस, मतलब ब्लॉगिंग कैसा है, लाइक शादी, दो लोगों में शादी जैसे होती है। तो
हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं, उसके बाद में फिर इनिशियली सब ठीक रहता है, बाद में थोड़े झगड़े होते हैं, बाद में एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हम लोग हमारे घर में भी देखते होंगे, आई थिंक हमारे पेरेंट्स में भी झगड़े होते हैं, यस सर। ओके, इतने सालों के बाद। तो ये ऐसा है कि भैया गूगल के साथ में हमारा एसोसिएशन ऐसा रहेगा ब्लॉगर का, कभी हम लोग रूठ जाएंगे उसको, कभी समझने की कोशिश करेंगे, ओके, समझोगे तो। लेकिन हम लोग को साथ में चलना है, दोनों को भी, गूगल को हमारी जरूरत है, हमको गूगल की जरूरत है। तो कभी Yes. उनके एल्गोरिथम हमको परेशान करेंगे, कभी कुछ एल्गोरिथम हमको सपोर्ट करेंगे। सो ये इस काइंड ऑफ मैरिज बिटवीन यू एंड गूगल। ओके ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन यूट्यूब के बारे में पूछना चाहूंगा। सर आपने बोला यूट्यूब का एल्गोरिदम एज पर दी उनके हिसाब से एसईओ के सर्च ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से चलता है, बट लेकिन सर आपके पास कंटेंट है तो उनका कुछ एक क्राइटेरिया होता है क्या? मतलब आपने जैसे बोला था कि वीक में 2 बार या वीक में 1 बार आप कंटेंट उनको प्रोवाइड करते हो गूगल को और अपलोड करते हो, तो उनका कुछ ऐसा क्राइटेरिया है क्या एज पर योर एक्सपीरियंस? आपका यूट्यूब चैनल भी है तो उसके हिसाब से कुछ ऐसा रहता है क्या, लाइक जो हर एक वीक या हर दिन में एक वीडियो होना चाहिए और उसको कुछ ऐसा मतलब उनका एल्गोरिथम रहता है क्या, नीड होती है क्या? ओके, मैं बताता हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी, जब लास्ट टाइम लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन जब हुआ था मार्च उसी मंथ मैंने, क्योंकि मैं मुंबई में अटक गया था, नागपुर नहीं आ पा रहा था मैं, मुंबई में मेरा घर है, तो वहां पे मैं अटक गया वहां पर, और मैं आ नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब शुरू करूँ। तो यूट्यूब मैंने वहां पे शुरू किया। इनिशियली मैंने वीकली वंस, पूरे साल भर मैंने वीकली वंस ही डाले वीडियो, हफ्ते में एक वीडियो डाले, ओके। तो मुझे लगता है 40 वीडियो डाले होंगे मैंने साल भर में। लेकिन नाइन्थ मंथ में मुझे यूट्यूब की 2 कंडीशंस है। एक तो 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और दूसरा 4000 आवर्स का कंटेंट वॉच होना चाहिए, वॉच टाइम 4000 आवर्स, ओके। दोनों कंडीशन अगर मैच होती है तो फिर आप यूट्यूब को अप्लाई कर सकते हो एडसेंस के लिए, ओके। अब उतना कंटेंट आपको, राइट, ओके, उतना कंटेंट आपको जल्दी जनरेट करना है 6 महीने में, तो डेफिनेटली आपको 2 वीडियो डालने पड़ेंगे साल भर में, सॉरी वीकली। लेकिन मैंने एक ही डाला था, मुझे 10 महीने लगे थे, 9-10 महीने 40 वीडियो कंप्लीट करने के लिए और 4000 आवर्स का कंटेंट वॉच करने के लिए। उसके बाद में मैंने अप्लाई किया एडसेंस के लिए। गूगल की तरफ से मेल आ जाता है हमको कि आप एडसेंस के लिए अप्लाई करो, और फिर मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद में फिर 1 महीने का प्रोसेस था, वो चेकिंग वेकिंग, वो उनके डॉक्यूमेंटेशन फिलअप वगैरह, एड्रेस वेरिफिकेशन, आईडी वेरिफिकेशन, वो सब हो गया, और उसके बाद में फाइनली मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप हफ्ते में 1 वीडियो भी डाल सकते हो अगर टाइम नहीं है तो, या फिर 2 वीडियो भी डाल सकते हो। जितना जल्दी आप करोगे, अपना टाइम जो है 1000 आवर्स, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का कंटेंट वॉच होगा, उतना जल्दी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। हाँ, लेकिन कंटेंट का ऐसा कुछ नहीं है कि कंटेंट किस प्रकार का होना चाहिए। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इलीगल कंटेंट नहीं होना चाहिए हमारा यूट्यूब के ऊपर में, वो बैन होता है। लेकिन आप चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे घूमने जा रहे हो, एंटरटेनिंग हो, कोई कॉमेडी हो, कंटेंट कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड सर आप एडिटर कौन सा यूज करते हो सर, मतलब पेड और इनिशियली मैंने जब शुरुआत की थी एडिटिंग, हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने यश। मैं बताऊंगा जितने भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं उनको, कि यूट्यूब का ऐसा है कि मतलब मूवीज जब बनाते हैं, मूवीज में अलग अलग रोल होते हैं, डायरेक्टर अलग होता है, एक्टर अलग होता है, एडिटर अलग होता है। यहाँ पर हम लोग सब है, ओके। अगर यूट्यूब खुद का चैनल शुरू करना चाहते हो तो आपको एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है और एडिटर बनना है। तो मैंने सबसे पहले एडिटिंग का टूल सीखा था सोनी वेगास, जो फ्री में अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड किया मैंने, डाउनलोड किया क्रैक वर्जन, और उसको इंस्टॉल किया, और उसके ऊपर मैं काम शुरू किया। उसके बाद में रियलाइज हुआ कि सोनी वेगास से बेटर टूल होता है प्रीमियर प्रो। यस सर, यस सर। तो प्रीमियर प्रो आप अगर आता है आपको, वो भी क्रैक वर्जन मिल जाता है आपको, उसको भी यूज करके आप जो है एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन मेरे पास में मैक है गाइस, तो मैक में एक फ्री में मुझे सॉफ्टवेयर मिलता है, उसको कहते हैं आई मूवी। मैं आई मूवी में एडिट करता हूँ मेरी वीडियोस। और पहले मुझे 4-5 घंटे लगते थे, 6 घंटे लगते थे एडिटिंग के लिए। अभी मैं कोई भी वीडियो 1-1.5 घंटे में एडिट कर देता हूँ। रेंडरिंग बहुत कम होता है सर उसमें शायद। किसमें? आई मैक में। हाँ नहीं, हाँ, रेंडरिंग के लिए मतलब साइज बोल रहे हो आप? साइज बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? टाइम बोल रहे हो? जैसे आप वीडियो प्रोसेस करते हो उसके लिए टाइम कम लगता है ना? हाँ, बहुत टाइम कम लगता है मेरा। आई थिंक 10 मिनट में, 5 मिनट में कभी रेंडरिंग हो जाता है। आधे घंटे का वीडियो रहा तो मुझे 15 मिनट लगता है रेंडर करने के लिए। और अगर 15 मिनट का वीडियो रहा तो वो 5-7 मिनट में हो जाता है, हाई क्वालिटी। ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जल्दी हो जाएगा क्या, लाइक 4 GB और ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं तो? हाँ, वो थोड़ा स्पीड इंप्रूव हो जाएगा, डेफिनेटली स्पीड इंप्रूव। ओके, दैट्स
Thank you so much, sir. Thank you. वेलकम। और कोई क्वेश्चन गाइस? नंबर तो दिया है मैंने, वैसे आपको कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अभी पूछ सकते हो, बाद में पूछ सकते हो, व्हाट्सअप करिए। जनरली मैं बिजी रहता हूँ मीटिंग में, तो शायद आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप पे भी आंसर कर दूंगा, मैं करूंगा, मेरी टीम करेगी आपको। एनीवन हु हैज अ क्वेश्चन? सो आई थिंक सेशन एंड करें। देशमुख सर, आर यू देयर? Yes, sir. या So actually, it was a very wonderful and knowledgeable session from Mr. Meshram, and I, on the behalf of School of Management Studies, GH Raisoni University, would like to thank Meshram sir and his team. थैंक यू सर। Thank you so much, sir. वेलकम सर, And थैंक with यू। your permission, we can conclude the session. श्योर सर, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल, एंड बहुत मजा आया मुझे, और क्वेश्चंस भी काफी अच्छे पूछे हैं आपके स्टूडेंट्स ने। सो इफ दे हैव क्वेश्चंस, दे कैन राइट इट डाउन टू यू, एंड यू कैन send me out. And as I mentioned, we will be sharing one link where they can appear for the examination, and those who will get maximum marks, toppers, 2 toppers, we can provide hosting services from our side at free of cost. Yeah, that will be very, very nice of you, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you so much. Yeah, so we'll end the session. I'm closing down the call. Okay, sir. Thank you. Bye bye guys. Bye, Sanjog sir. Thank you, sir. Bye.